अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व बअद क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Alhamdulillah, it is a great honor and a privilege to be present with you and been asked to say a few words. It's indeed a great responsibility that I feel the pressure for it, and I am humbled by the fact the administration trusted me to deliver this talk today. I hope and pray that I'll be able to say a few words that will be beneficial to every one of us, inshallah, summa inshallah. And as I speak, I request all of you to give me undivided attention. And in any shape and form, if you feel that I'm going pretty fast, stop me. Ask me to slow down. Reason, I did not come here to give talk and walk away, and you did not come here to just listen and say, wow, we attended the program and we left. That's not the purpose, is it? The purpose of our gathering is to learn, to understand, appreciate, and live accordingly. That is only possible if you could hear me well and understand what I'm trying to say, and you must have this resonates with you in order for you to live accordingly. I was told majority of you are here students and some teachers and some college going students. I feel very privileged to have audience with you because that's what I always desire, to connect with students, youth, especially the foundation of our communities, our sisters. First, darsgah of a child, our mothers and future mothers. If this institution is put in place and protected and guarded, we can then hope for the bright future. And it is very possible. Throughout centuries, we've seen that the institution, our sisters, stayed firm and grounded in Islamic beliefs. Anything that come through them was very, very strong, and nobody could shake them, because the words that is inspired by mothers will resonate with child till the day that they breathe their last. That's undeniable fact, not only among Muslims, but across the human world. Yes, that's the power of motherhood. That's the power of sisterhood. And that's the power that need to be utilized and used for this purpose. I won't be able to read this. I don't have my glasses on. Go ahead, sit. Okay. So, we understand that. I'm here to discuss with you. So, in the interest of time, I will say a few things. And I'd like for all of you to work with me on this. Time now is 2:22. Our time is till 4 o'clock. Little over an hour and a half is what we have. अब इस टाइम का इस्तेमाल हमें अच्छे तरीके से करना है. Now that I have put the foundation, मैं इसको डिवाइड करना चाहूँगा 3 different topics के अंदर. सबसे पहले मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना है आप सबके सामने, ताकि आप लोग भी इसकी गवाही देके मौलाना जो आए थे बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करके गए हम लोग की वजह से बोलकर.
और वो इस वास्ते कि जो ये प्रोग्राम आप लोग कर रहे हो ना, इतनी वक्त की जरूरत और तकाजे वाली चीजें मैं बयान नहीं कर सकता। और इसमें आप लोग जिस तरीके से भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स की वजह से या आप खुद काबिल मुबारकबाद है। फिर वो हजरात जो आप सबको यहाँ एड्रेस कर रहे हैं ना, यहाँ से उनके इखलास की मैं गवाही दे सकता हूँ। क्यों? कहने वाले के इखलास के ऊपर मबनी होता है कि सुनने वालों पर उसका कितना असर होता है, और सुनने वालों की जस्तजू के ऊपर डिपेंड करता है कि कहने वाला क्या कह रहा है। तो जब मैं अपने घर की लड़कियां यहाँ पार्टिसिपेट करने के बाद उनके ज़बानी सुना हूँ, जो यहाँ पर टॉपिक डिस्कस की गई, इट वाज माइंड बॉगलिंग, अनबिलीवेबल। मैं कभी वाइल्डेस्ट ड्रीम के अंदर भी नहीं सोच सकता था कि हैदराबाद के अंदर भी इतनी हॉट टॉपिक के ऊपर एक मस्जिद के एनवायरनमेंट में एक मौलाना साहब एड्रेस करेंगे। I was so amazed, you cannot imagine. बहुत खुश हुआ मैं। और this message did not only echoed in our own house, it went across the continent. Literally, हमारे खानदान में सबके पास फोन चले गए, इतनी जबरदस्त टॉपिक पे बात हुई, ये चीजों के ऊपर डिस्कशन हुआ, वो भी मस्जिद में हुआ और मौलाना साहब बात करें। तो that was really good, and I'm inspired by that to be present here today with you all. इस बात को लेकर आज उम्मीद ये कर रहा हूं कि मैं आप लोगों से मजीद बात कर लूं कुछ और अहम टॉपिक्स के ऊपर। आज की टॉपिक जो मुझे दी गई है वो क्या है? दुश्मनाने इस्लाम का इस्लाम के साथ खिलाफ साजिश। This is the topic that is very near and dear to my heart. वो इस वजह से कि कहने वाले का तारुफ अगर हो जाए ना, तो उसकी बात का फिर अच्छी तरीके से अंदाजा भी होता है। तो थोड़ा सा वक्त लेकर अपनी अना नहीं दिखाना चाह रहा हूँ और मैं कुछ फखरिया बात कहना चाह रहा हूँ। सिर्फ इसीलिए बताना चाह रहा हूँ मैं आप लोग को कि किस सोर्स से आप लोग को ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। आपको पता है ना, स्पीच के अंदर ये चीजें बताई जाती हैं सिखाने के लिए। हम टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनर्स को ट्रेन करते हैं, तो ये बात बताते हैं कि बात करने के अंदर 3 चीजों की अहमियत रखनी होती है। एक, आपकी क्रेडिबिलिटी, जो कहने वाला है, जो कह रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश होना चाहिए कि जो कह रहा है वो यकीन करने के काबिल हो और जो बात कही जा रही है वो फायदेमंद हो, ये एस्टैब्लिश होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको मुझ पर थोड़ा सा तो भरोसा होगा, है इंशाअल्लाह जी। और जो बात कहने जा रहा हूँ तो कुरान हदीस के हवाले से कह रहा हूँ, तो उसके तहत हम यकीन करते हैं। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज कहते हैं कि ये एस्टैब्लिश हो जाने के बाद दूसरी चीज हमको ये कहना है कि इस मैसेज को जो हम आपको देना चाह रहे, वो मैसेज के ऊपर अगर आप अमल पैरा नहीं होंगे तो क्या नुकसान होगा, ये आपको बताएंगे। तो पहले क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पॉइंट टू बी नोटेड, शायद ये सवाल में आ जाए। और दूसरी चीज, अगर जो बातें बताई गई उस पर अमल नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होंगे। तीसरी चीज, ये कर लेंगे तो क्या फायदा होगा। हर आदमी अपने फायदे का देखना है, दीन का भी हो सकता, दुनिया का भी हो सकता, या दोनों का भी हो सकता, इसमें कोई खबार नहीं, मगर इंसान की फितरत में ये चीज है। अच्छा, तो क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए थोड़ा सा मैं अपनी बात बताते चलूं। मैं पिछले 35 साल से ऑलमोस्ट अमेरिका में रहता हूं। जब अमेरिका गया था, अंग्रेजी का एक लफ्ज नहीं बोलता था, मदरसे का फारिग, और रट्टा लगाकर रेस करके चला गया था, उसके अलावा कुछ और नहीं आता था। अगर कोई मुझसे 1-2 लफ्ज पूछ लेता, अरबी का तर्जुमा कर दे या कुरान की किसी आयत की सूरत का तर्जुमा कर दे, उनकी शक्ल हैरानी में देखते रह जाता है और अपने आप को पूछता कि क्यों कर मैं मदरसे को गया या आगे सिवाय दलील होने की कुछ और मुझे नहीं मिल रहा। और लोग बड़ी मजे के साथ मुझे एम्बेरस किया करते थे। आ गए हैं तोते की तरीके से रखकर कुरान को हाफिज साहब, इनको एक लफ्ज का तर्जुमा भी नहीं मालूम। And I was teenager, only 17 year old at that time. And having to put up with these challenges, ये लोगों के साथ, ये engineers, doctors, professors, universities के businessmen, सब के सब, instead of trying to learn something, मेरी तरफ से मुझे इंटीमेट करके मुझे इतना अपनी नजर में जलील और ख्वार करने की कोशिश करते कि बस हमें कुछ आता है। फिर 2-3 बातें इस्लाम की बता दिया करते थे, तो बस ऐसा कि भाई देखो ये तो मौलवी बन के आया था, इससे ज्यादा हमको मालूम है।
बड़ा रोता था, खामोशी में जाकर अल्लाह से आगे अपने असातिज़ा को फोन किया करता था, खता लिखा करता था। तो उन्होंने कहा कि फिक्र मत करो, तुमको जो दीन सिखाया गया वही असल दीन है। बेशक उनके पास डिग्रियां होंगे, बेशक वो हवेलियों और कोठियों के अंदर रहते होंगे, बेशक वो बड़ी बड़ी लग्जरी कार चलाते होंगे, मगर उन सब के मुकाबले में तुम्हारे को जो दीन हासिल है उसका कोई बदल नहीं। कुर्बान जाए मेरा साथिया। और वो अज़्म, वो इरादा, वो यकीन कुरान की अजमत का जो उन्होंने दिल में बिठा दिया, फिर सारी दुनिया मेरी नजर में हेच हो गई, उसकी कोई अहमियत नहीं रही। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही थी, अहमद अब्दुल्ला तैयब साहब दावत बरकातहू। उन्होंने कहा था कि हाफिज कुरान या कुरान का कितना ही हिस्सा तुम्हारे दिल में महफूज हो, उसके बाद अपने आप को किसी दुनियादार से कमतर समझना या कुरान की नाकदरी ही नहीं बल्कि कुरान पर जुल्म होगा, और ऐसे जुल्म से आप अपने आप की हिफाजत करें। कुरान की अहमियत उन्हें दिलाती थी। उस कॉन्फिडेंस के साथ यह आज़म पैदा हुआ कि भाई अब कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को इसकी अहमियत भी जता दी जाए, बजाय उनके साथ इन्फ्लुएंस होने के उनको इन्फ्लुएंस करने वाला जज्बा पैदा हो गया। अब जब ये जज्बा पैदा हो गया तो वहां सब अंग्रेजी में बोलते हैं और अंग्रेजी बोलना नहीं आता, तो अंग्रेजी सीखने के लिए कहां जाना पड़ा मौलवी साहब को? चर्च में। जी, चर्च के एक बेसमेंट में क्रिश्चियन प्रीचर की निगरानी के अंदर अंग्रेजी सिखाई जाती थी फॉरेनर्स को। वही एक रास्ता था। काफी फतवे लगे मौलवी साहब पर उस वक्त, मौलवी के चर्च में जा रहा है, मैंने कहा तुम बको जो बकना है, जिस दिन मेरे जबान चलने लगेगी ना अंग्रेजी में, तुम्हें बताऊंगा कि मौलवी साहब कौन है। जब जाकर अंग्रेजी खूब सीखी, कुछ वक्त गुजर गया, अच्छी खासी हमारी पूरी क्लास अंग्रेजी बोलने लग गई, तो ऊपर से पादरी जो सलाम दुआ हाय बाय किया करता था, नीचे उतरकर क्लास में आ गया उस दिन ग्रेजुएशन से पहले। उनकी इतनी सारी मेहनत इसलिए वो करते थे कि फॉरेनर्स को बुलाकर अंग्रेजी सिखाए, जब वो अंग्रेजी बोलने के काबिल हो जाएंगे तो उनको इंट्रोड्यूस करेंगे क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस करना उनका मकसद होता था। तो जब उनको बात सिखा दी उन्होंने तलबा को, वो प्रीस्ट साहब आके बैठ गए और बैठकर वो अपनी जानना शुरू किए, और वो रीजन कर रहे थे। इसलिए बता रहा हूं मैं कि चैलेंजेस क्या आते हैं, ये तमाम आप लोगों की उम्र या आपसे कम उम्र या कुछ ज्यादा उम्र वाला, इन हालात का सामना करना पड़ा एक अकेला तनहा। और ऐसे माहौल के अंदर जब मेरा अपना कोई नहीं था और मुसलमान नाम लेवा मुसलमान भी मेरे खिलाफ थे, ऐसे हालात के अंदर अगर मैं उठ ठहरा तो कैसे ठहरा? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मुझे ये सिखा दिया गया और मैं मान लिया उस बात को कि तुम्हारे पास जो दौलत है वो किसी से कम नहीं, तुम्हारे पास जो इल्म है वो किसी से कम नहीं, तुम्हारा जो यकीन है वो किसी से कम नहीं, तुम्हारा जो दीन है वो किसी से कम नहीं। ये बात का यकीन हो गया बस। अब जब ये बात आ गई तो भी दुनिया से मुकाबला करने के लिए ठहर गए थे। तो वो आया, वो प्रीस्ट आकर चौक, व्हाइट बोर्ड होता ना, व्हाइट बोर्ड के ऊपर मार्कर लेके उसने जस्ट यूज योर इमेजिनरी पावर राइट नाउ टू सी दैट। एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर उसने दो हिल उतारे, एक ऐसे उतारा और थोड़ा सा फासले से दूसरा वाला हिल ऐसा उतारा। उसके बाद उसने एक के ऊपर GOD गॉड लिखा, दूसरे हिल के ऊपर ह्यूमन लिखा। हम सब बैठे देख रहे हैं क्या माजरा है। तो फिर उसने कहा व्हाट इज दिस? सबने अब जब अंग्रेजी पढ़ने आ गया था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय जब पढ़ते थे तो जी फॉर गॉड भी पढ़ने आ गया था। मैं गॉड, दूसरे पे ह्यूमन, गुड। फिर उसने कहा अच्छा तो बताओ अब अगर ह्यूमंस को गॉड तक का पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? ये तो हिल है और बहुत बड़ा फासला है, क्या चीज की जरूरत है यहाँ पर? बच्चों ने सवाल कहा ब्रिज डाल दीजिए तो पहुंच जाएंगे वहां पर। कहा कि गुड आंसर। तो उन्होंने ब्रिज की लाइन उतार दी, उसको ब्रिज को उतार कर कहा कि ये ब्रिज को इस्तेमाल करने के लिए ब्रिज वाले से परमिशन लेना होगा। हमारी बात तो बिल्कुल सही है, मगर वो ब्रिज की परमिशन देने वाला कौन और किसका ब्रिज है?
तो उसके ऊपर एक लकीर ऐसी खींचा वो के बीच में, जैसे ही उसने लकीर खींचा वो बन गई सलीब, क्रॉस। ब्रिज ऐसे कनेक्ट किया और उसके बीच में ऐसी लकीर खींचकर उस पर लिख दिया जीसस। तो सब के सब खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, कहा अच्छा। तो फिर उसने कहा देखो, खुदा के पास अगर तुम्हें पहुंचना है ना तो जीसस को बिलीव करना होगा, उसके बगैर तो खुदा तक नहीं पहुंच सकते। सब बहुत खुश हुए। उसकी नजरें जमी भी थी किसी पर जिसके पास से थाली नहीं बची। तो उसने कहा no say something। तो उसने मेरी टीचर को देखा, ये पूछने के लिए कि इंग्लिश नहीं जानता क्या? तो उसने कहा नो 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 नो, स्पीक्स इंग्लिश गुड, हिज लर्न वेरी वेल। तो मैंने कहा go and say something। तो मैं फर्क की क्लास को देखा, मुझे वो क्लास वालों का सबका पता था। Should I? तो सबने कहा कि यस तू बोल। तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल किया, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, इंसान इतना कमजोर है कि बगैर वास्ते जीसस के अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। मेरा एक ही सवाल है आपसे, क्या अल्लाह भी इतना कमजोर है कि वो बिना वास्ता इंसान तक नहीं पहुंच सकता? कि उसको भी जीसस का ही सहारा लेना पड़ेगा? वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ प्रीस्ट था, फौरन भाग गया उसने, इसने मेरी नक पकड़ ली है इसको। तो उसने कहा नेचुरली गॉड वुड लाइक टू यूज जीसस टू कम टू द ह्यूमंस। तो मैंने कहा अगर वो खुदा तुम्हारा जो डिपेंडेंट है इस बात का कि उसको भी किसी के जरिए के बगैर इंसान तक नहीं पहुंच सकता, तो वो नाकिस है, और नाकिस खुदा कहलाने के काबिल बिल्कुल भी नहीं। मेरा खुदा ऐसा है कि मेरी तमाम खामियों और कमियों के बावजूद भी वो मुझ तक पहुंच सकता है बिला वास्ता। उदऊनी अस्तजिब लकुम। तब उसने ये सोचा कि हाय हमने किसकी जबान को ट्रेन कर दिया अंग्रेजी बोलने का। अब जब मुझे बोलना आया तो उस वक्त से मैंने अपना वादा किया कि इंशाल्लाह दावा के काम में पीछे नहीं रहना। तो वो मूसा कंटिन्यू किया अपने एजुकेशन को। आज डॉक्टर मूसा आजम इब्राहिमी के नाम से मारूफ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर मेरे पास है। आई स्पीक ओकेजनली ऑन डिफरेंट फेथ ग्रुप्स, और मैं बैठता हूँ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की टीम के ऊपर ऑन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लाम, और यूनाइटेड नेशन में इस्लाम एंड मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट किया है। ये तमाम चीजें मेरे प्यारों इसलिए ही मुमकिन हुई कि सिर्फ अल्लाह के इस दीन के ऊपर पूरा पूरा यकीन था। वो कि मेरे इल्म की नाकिस होने का पूरा एहसास भी था। मेरे पास कुछ भी इल्म नहीं है उनके मुकाबले में, मगर इतना जरूर था कि जिसका नाम लेवा हो मैं उसके पास सब कुछ है, और उसकी इतनी एप्लीकेशन मेरे लिए काफी थी। ये यकीन जब हो जाएगा तो फिर आप दुनिया के कितने ही बड़े बड़े तूफान आपके सामने आओ, आपके कदम को नहीं हिला सकता। ये यकीन अल्लाह की जात के ऊपर हो जाना बहुत जरूरी है। एक दूसरी चीज जिसके लिए आप लोग काफी लेक्चर सुन चुके हैं कि अल्लाह की जात के ऊपर अपने ईमान को यकीन को मजबूत रखना है। सेकेंड टर्म मैंने इन्वेंट किया उसको, वो ये था कि आई वॉन्ट टू बिकम एन अनअपॉलोजेटिक मुस्लिम। यप, unapologetic Muslim, a very good term to be remembered। अपने मुसलमान होने का किसी को भी हम सफाई पेश नहीं करें। हम मुसलमान हैं बगैर किसी दलील के, खलास। तुम्हें समझ में आए या नहीं आए, ये हमारा मजहब है और इस पर हम मरेंगे, जिएंगे मरेंगे इसी पर। ये एक अगर ठान लो ना, और सब अगले को ये पता चल जाए कि भाई आप इसको कुछ नहीं कर सकते, तो फिर वो सही और कोशिश आपके खिलाफ करना बंद कर देते।
आपने देखा होगा बैंक के अंदर आपके चोर इर्द गिर्द नहीं घूमते, उनको पता है वहां सेफ है, मोहल्ले भर की ज्वेलरी वहां पर सेफ में पड़ी हुई है, करोड़ों का पैसा रखा हुआ है, उसके बावजूद भी वहां इर्द गिर्द नहीं घूमते। क्यों? उनको पता है सिक्योरिटी इतनी टाइट है वहां पर, उसके ऊपर से सर्वेलेंस भी है कि अतराफ से गुजरेंगे भी 2 दफा तो फौरन सस्पिशियस होगी तो पकड़ लेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कहते हैं गो के वहां पर खजाना पड़ा हुआ है, नहीं जाते। जहां छोटे छोटे जेवरात इधर उधर इनके घरों में पड़े हुए हैं वहां डाका डाल के चोरी कर लेते हैं। क्यों? उसको ये पता है यार ये सिक्योरिटी को ब्रेक करके मैं जा ही नहीं सकता, तो वहां कोशिश करना बेकार है। इसी तरीके से आपके ईमान की सिक्योरिटी का सामने वाले को जब एहसास हो जाएगा ना कि भाई कुछ भी कर लो इसका ईमान ही नहीं छोड़ेगा, तो फिर आपके आसपास फिरना छोड़ देंगे। फर्स्ट स्टेप, making your position solid and grounded in Islamic belief in a way that सामने वाले को loud and clear message convey हो जाना चाहिए, मरता मर जाएगा ये इस्लाम को नहीं छोड़ेगा, इस्लाम के मामले में कॉम्प्रोमाइज हरगिज नहीं करेगा। और क्यों ना ये मुसलमान की सिफत हो, जब अबुल अंबिया सय्यदना इब्राहिम खलीलुल्लाह कि ये बात अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उनके अल्फाज को जू कद्दू कुरान में नाज़िल कर दिया। अब बकरीद की ईद आने वाली है, सेलिब्रेट कर रहे हैं उन्हीं की लाइफ और उनकी लेगेसी को। उनके हवाले से एक बात बताते चलता हूँ। क्या अल्लाह ने कहा? कुल कह दो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फॉलोवर्स को, रहती दुनिया तक का ये चीज कुरान के अंदर नाज़िल हो गई है और ये क्राइटेरिया रहा इब्राहिम का। जिस क्राइटेरिया के ऊपर इब्राहिम ने अपनी जिंदगी गुजारी, तो अल्लाह ने उनको एक ऐसा यूनिक टाइटल दिया जो किसी और को मिला ही नहीं। वो क्या टाइटल उनको मिला? अल्लाह कहता है वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह इब्राहिम को अपना खलील बना लिया। खलील ऐसी जगह इस्तेमाल होता है जो बिल्कुल स्टाउच फ्रेंडशिप, नहीं टूटने वाली फ्रेंडशिप। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसको कह रहे हैं? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। इब्राहिम मेरे दोस्त थे। क्यों? वो इस क्राइटेरिया की बुनियाद पर क्या कहा उसके अंदर अल्लाह ने? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कह दो कि मेरी नमाज, मेरी जिद्दोजहद, मेरा जीना, मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह वहदहु ला शरीका के लिए, जिसके साथ मैं किसी को भी एसोसिएट नहीं करता इन एनी शेप एंड फॉर्म। आइडल भी बना के नहीं करता और ख्यालात की दुनिया में भी नहीं करता, और ना मानने की जगह पे एसोसिएट करता हूं, शिफ्ट करता, ना डरने के मामले में, क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी से डरता भी नहीं मैं ऐसी तैसी। ये एटीट्यूड होना चाहिए हमारा, अल्लाह के अलावा किसी और से मानता भी नहीं, ये होना चाहिए। ये सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह ने कुरान में नाज़िल कर दिया। और बिज़ालिका उमिरतु, इसी का मुझे हुक्म दिया गया है, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं पहले मुसलमानों में से। ये मुसलमान का क्राइटेरिया है। ये अगर बात समझ में आ जाए और ये मैसेज रेजोनेट हो जाए हमारे साथ, तो फिर कुफ्फार ना उम्मीद और ना मुराद होकर पीछे लौट जाएंगे। एक अल्लाह का यकीन दिल में हो जाना चाहिए, और जब ये हो जाएगा तो अनअपॉलोजेटिक मुसलमान आप होंगे। तीसरी चीज, जब आपको यकीन हो जाएगा ये बात का कि आपके पास जो है वो दुनिया की तमाम नेमतों को इकट्ठी एक जगह कर दे, तब भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती, वो है आपका ईमान। अब जब यकीन की चीज आपके पास है, तो हर चोर और डकैती डालने वाले की नजरें आपके ईमान के ऊपर रहेगी और उनकी हर मुमकिन कोशिश होगी वो आपसे चुरा ले। और यही कोशिश सारी दुनिया में हो रही है, और ये टॉपिक मुझे दिया गया है। तो क्रेडिबिलिटी की जहां तक का बात थी, मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करा के इतना बता दिया आप लोग को कि मेरी इब्तिदा वहां से है, और इंतहा यह है कि आज मैं मल्टी रिलीजन कमेटी के अंदर बैठता हूँ, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन होता और उनके साथ उनकी नापाक स्कीम्स हमारे सामने आती, और उनको हम लेकर फिर इमाम की मेरी जो काउंसिल है, नॉर्थ अमेरिकन इमाम्स फेडरेशन की, उसके अंदर हम फिर इमामों की काउंसिल के अंदर उसका एक मेमो बनाकर सारे इमामों को भिजा देते हैं। जो 1200 से ज्यादा मसाजिद के खतीब है,
तो एक लाइन हमारी जो लिखी हुई है उसको लिखकर जब हम सेंड का बटन दबाते हैं तो 1200 इमामों के पास पहुंच जाती है और वो 1200 मेंबरों से एको होती है। ये पावर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। तो जब हम ये अंदर से बातें सारे निकालते हैं, इमामों को बताते हैं, वो इस वजह से कि हम इमामों की जिम्मेदारी है कि अपने कम्युनिटी की हिफाजत करें। उन हालात के अंदर जो सामने बातें हैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा। 20 मिनट में मैंने ये बातें आपसे कर दी। अब दूसरी बात ये करने जा रहा हूं कि चैलेंज क्या है। चैलेंजेस नेक्स्ट 20 मिनट में मैं बात कर रहा हूं। क्रेडिबिलिटी तो बता दी मैंने, चैलेंजेस सुन लीजिए। सारी दुनिया को किसी मजहब से भी इतना खतरा नहीं है जितना खतरा इस्लाम से। ये तो बात हमेशा सुनी बात होती है, बिल्कुल आपका हाथ नहीं। आज थोड़ी सी वजाहत करते चलता हूं क्यों है। इस्लाम के मानने वालों के अंदर बकौल उनके एक जज्बा ऐसा है, उस जज्बे की तोड़ उनके पास नहीं, उसके अलावा हर चीज उनके पास है, मगर वो एक खास यूनिक चीज है इस्लाम के मानने वालों पर में जो उसका उनके पास तोड़ नहीं है। कोई आप लोगों के पास आइडिया है वो क्या चीज होगी जो हम मुसलमानों के पास है और उनको पता है, और बहुत सारे मुसलमानों को भी इसका एहसास और पता नहीं है। यस यस बिल्कुल, हमारा यकीन है, देखा कभी नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। उनके कहने के मुताबिक ये है कि मुसलमानों को मौत का डर नहीं है। ये तो बहुत डर है, आप सोचेंगे बेशक आपको होगा, अगर हकीकी मानों के अंदर आका नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आप 13 साल की पहली नबूवत के बाद की जिंदगी को देखेंगे तो इतने कुर्बानियों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के होने का यकीन उनके दिलों में मुंजबित किया था और मरने का डर उनके दिलों से निकाल दिया। इसी वजह से वो तमाम मसालिक के बावजूद भी इस्लाम के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। आले यासिर की सारी कहानी हमारे सामने मौजूद है। सारी की सारी फैमिली को कुफार मक्का वज़र आम जुल्म किया और मार दिया, मरते मर गए वो, मगर एक शिरकिया लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकाला। यहां से कुफार की नाउम्मीदी शुरू हो चुकी थी और यहां से दीन का और ईमान का पावर पता चल चुका था लोगों को। तो ये कुफारों को ये पता चल गया कि इस्लाम सबसे पहले आकर अपने यकीन उनके दिलों में डाला और मौत का डर उनके दिल से निकाल दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और काम किया था, इस दीन के खातिर अगर तुम्हारी जान भी चली जाए तो जाने दो। जैसे तुम्हारी आंख बंद होगी आसमान से खुसूसी फरिश्ते आएंगे और तुम्हें कोई एजाज और इकराम के साथ लेके जाकर तुम्हें इस्तेमाल करेंगे और तुम्हारा नाम शहीदों में लिखा जाएगा और तुम्हारी नवाजिश ऐसी होगी कि दुनिया तक लोग हसरत की नजर से तुम्हें देखेंगे और याद करेंगे। यही वजह है आज आले यासिर को आज भी याद किया जा रहा है। एक नुक्ता इसके अंदर बताते चलो, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या राज है? कुल्लु मन अलैहा फान, सब कुछ तबाह और फना होने वाला है। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी अगर रहेगा तो सिर्फ रब्बे ताला का नाम बाकी रहेगा। अल्लाहु हय्य ला यमूत, ही इज एवर लिविंग नेवर डाइज। आप लोग खुदारा इस बात को सिर्फ लेक्चर समझ के नहीं जाना। जो बातें मैं कह रहा हूं ये इरादा कर लीजिए कि मेरी अपनी जिंदगी को चेंज करने का इसी मूवमेंट से मैं फैसला करती हूं और जो बातें बताई जा रही है उसको इसी मूवमेंट से
अपनी जिंदगी में लाकर अपनी जिंदगी को बदलना चाहूंगा। ये कर लेंगे तो खुदा की कसम कह रहा हूं मैं, आपकी जिंदगी इसी मोमेंट से बेहतरीन रास्ते पर लग जाएगी। ये बड़ी सीक्रेट बात बता रहा हूं मैं आपको, जो सहाबा के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैबस कर दी थी, वो ये था कि अल्लाह वही ला यमूत, वो एवर लिविंग है, कभी नहीं मरने वाला है। उसके नाम के साथ अपने रिश्ते को जोड़ लो, उसके नाम के साथ अपने आप को जोड़ लो, तो आप भी कभी नहीं मरेंगे। हम सब मरते हैं, ये क्या बात कर रहे हैं अपने मरने की? हाँ, इंसान तो मरने के लिए आया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मगर बाकी मर के भी रहना, यानी उसका जिक्र याद रह जाना, उसके इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग उसको याद रखना, ये है बाकी रह जाना। और ये बाकी रह जाना उसी सूरत में मुमकिन हो सकता जब वो अल्लाह बाकी के साथ अपना रिश्ता मजबूत जोड़ ले इस जिंदगी के अंदर। तो जिंदगी में मरने के बाद भी इंसान कयामत तक का बाकी रह जाता। मिसाल उसकी आले यासिर की मैंने दे दी। आले यासिर को मरे हुए 1400 साल से ज्यादा हो गया, और आज भी हमारी महफिलों में उस सारी की सारी फैमिली जिंदा है। क्यों? वो अल्लाह हय्य ला यमूत के वास्ते अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया, उसके बदले में अल्लाह उनको कयामत तक के लिए हमेशा हमेशा याद रखना और उससे नसीहत पकड़ने का जरिया बना दिया। अब उस जमाने से आज तक का कितने करोड़ मिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग आकर चले गए, बताइए उनका नाम नहीं। क्यों? वो गुमनाम होकर रह गए, ये सोचकर कि इस जिंदगी में मैं अपना नाम बनाकर कुछ बनकर जाऊंगा। अल्लाह उनकी अना के अंदर ही उनको मिटा के छोड़ दिया, और जो अल्लाह के साथ अपने नाम को जोड़ लिया वो हमेशा हमेशा के होकर रहेगा। तो ये एक नुक्ते की बात कह रहा हूं, अगर हम सबको भी हमेशा हमेशा जीना है ना, मतलब इसका इस जिंदगी में भी ऐसी जिंदगी जिए कि जो लोग 100 जिंदगियों में भी काम नहीं करते, ऐसा काम कर गुजरने वाले बनना चाहते हैं, तो अल्लाह हय्य ला यमूत के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर लीजिए। फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी जिंदगी में वो काम लेगा जो लोगों को 100 जिंदगी लेके भी नहीं कर पाएंगे। आप छोटी सी मुख्तसर वक्त के अंदर काम कर गुजरेंगे। इस तरह से काम में बरकत होती है। अगर इतनी बात भी कहकर नोटिया से चला जाऊं और ये बात आप सबको समझ में आ गई, तो मैं समझूंगा कि आज की मेरे यहाँ आने का मकसद पूरा हो चुका है। तो दुआ कीजिए कि ये बात आप सराहत कर दें इंशाअल्लाह। आगे बढ़ता हूं मैं। ये चीज इनको अच्छे तरीके से पता चल गया कि मुसलमान मौत से नहीं डरते, क्योंकि उनके नबी ने उनको बता दिया कि इस्लाम के खातिर अगर तुम्हारी जान भी चले जाए तो जाने दो, अल्लाह तुम्हारे को ऐसा इस्तेमाल करेगा और नवाजेगा जो तुमको 100 जन्म लेने के बाद भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। वो बखुशी अपनी मौत को एम्ब्रेस करते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं हम हर चीज की लालच देकर अपनी तरफ उनको बुला सकते हैं, बुला ले सकते हैं। तो इस सिलसिले में अब नाउ मैं क्लोज डोर मीटिंग की अंदर की बातें बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि फिर क्या करें यार, मुसलमानों को इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है? उनको डरा के धमका के या उनको लालच देकर गलत कामों की तरफ उकसाना और उनके दीन की उनकी नजरों में अहमियत को घटाने का क्या तरीका है? तो कहा कि वो जो चीज मोहम्मद अरबी ने की थी उसको रिवर्स करना होगा। देखो ये पीएचडीज किए हुए हैं ना, दे आर थिंकर्स, तो दे डू लॉट ऑफ रिसर्च। इनके पास 150 पीएचडीज बैठे होते हैं सैलरीड। उनको ये कह दिया जाता है कि तुम्हारे जहनों का हमें इस्तेमाल करना है, तुम्हें अपने माश की कोई फिक्र नहीं करनी है, तुम्हारा खर्चा पानी सब कुछ दे दिया जाएगा, तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ यही है कि यूं कोशिश करके कोई रास्ता निकालो कि इसका हल क्या। तो उन्होंने ये उनको तजवीज पेश किया कि इनके दिलों में फिर से जिंदगी और दुनिया की मोहब्बत को डाल दी जाए। जब इस जिंदगी की मोहब्बत उनके दिल में आ जाएगी तो खुद ब खुद मौत से नफरत और डर पैदा हो जाएगा, और जब उनके दिल में मौत का डर पैदा हो जाएगा तो मौत के डर से उसे जो चाहे हम काम ले लेंगे।
ये बात है 1993 की बता रहा हूं मैं, बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए थे उसको। टेड कॉपल ने ये बात कही थी, रेफरेंसेस के साथ दे रहा हूं, एबीसी न्यूज के ऊपर रिले हुआ था ये, इन रेफरेंस टू वन ऑफ द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज दैट आई कैन नॉट टेक इट। उस वक्त इन्होंने कहा कि ये काम कर लेना चाहिए हमको, जब ये काम हम करेंगे तो फिर हम उससे जो चाहे काम ले सकते हैं मुसलमानों से। इस दुनिया की मोहब्बत उनकी दिल में डाल दो, इसकी आसाइश को इनकी जिंदगी का मकसद बना दो। ये एक टाइम ही तुम्हें जिंदगी में जीना है, जो कुछ करना है, जैसा चाहे, तुम जैसा चाहते हो वैसा जीने का तुमको इख्तियार है, तुम जी लो। खामखा दीन की और मौलवियों की बातों में आकर अपनी इस एक वक्त जीने वाली जिंदगी को जाया मत करो, ये उनको पिला दो बोलकर। और दीन की ये तमाम वादे उनकी नजरों के अंदर बिल्कुल बेएतबार कर दो। पूछा कि ये कैसे होगा? कहा सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, मैं क्यों खुश हूं आज आप लोग मेरे ऑडियंस से, कोई बूढ़े बड़े ने, कोई डिसरिस्पेक्ट उनके खिलाफ नहीं है, इसलिए कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि 4 दिन के मेहमान हैं, एक पांव कब्र में लटकाए हुए चले जाएंगे, उनके ऊपर मेहनत भी करेंगे तो रिसोर्सेज जाए हो जाएंगे, हमें तो इनकी औलादों को पकड़ना है, उनको एक मरतबा अपनी तरफ ले आएंगे तो खुद ब खुद हमारी कामयाबी वो खुद लेकर आकर हमें पेश करेंगे। तो मेहनत करो मुसलमानों के नौजवान तबके पर, और खुसूसन उनकी लड़कियों पर। वल्लाहि अज़ीम, ये नजरें उनकी बैठी हुई है, उनकी नजरें बैठी हुई हैं आप पर। और ये मेरी कोशिश है कि मैं पैगाम आप तक पहुंचा दूं। यूं पिक्चर कीजिए कि सुनामी की लहरें शुरू हो चुकी है, पानी बड़ी तेजी से आ रहा है, जो कुछ अपने रास्ते में उसको तबाह करते चले जा रहा है, और मैं हवाओं की लहरों पर उतर के आके आपके सामने बैठ गया और बता रहा हूं कि पानी वहां तक पहुंच चुका है। आप लोग कुछ अपनी बंदोबस्त कर लीजिए, वो अगर इसमें मेरी बात को भी यकीन नहीं करेंगे और थोड़ा सोचने का भी टाइम लेंगे तो मुमकिन है कि वो पानी आपको भी बाहर ले जाएगा। अगर अपने आप को बचा सकते तो बचा लें। इट इज दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी आई वांट टू क्रिएट हियर। ये हो रहा है, इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम कि आप तक पहुंच जाएगी ये चीज। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर मेहनत करो। ये नौजवानों के ऊपर कैसे मेहनत की जाए? दे देन इंट्रोड्यूस, अल्लाह माफ करे कुछ चीजों को मैं अननेसेसरी आप लोगों के सामने उनके एडवर्टाइज कर रहा हूं शायद ये बोलकर, मगर चूंकि वो माजी में हो चुका है, बड़ी एहतियात से कह रहा हूं कि मगर आप लोग खुदा रहा उसको इस्तेमाल नहीं करो। मगर मैं बता रहा हूं उन्होंने जिस व्हीकल को इस्तेमाल किया हमारे नौजवानों को कैप्टिव करने के लिए, एमटीवी, सोशल मीडिया। उन्होंने कहा ओल्ड जनरेशन इसको सीखते सीखते वक्त लग जाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसके तरीके से हम क्या कुछ उनके दिमागों को खराब कर चुके होंगे, और उनको होश आया तक का ये जनरेशन पूरा हमारा हो चुका होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बम्बार्ड करो उनको इस तरीके से कि वन आफ्टर अनदर। तो पता है आपको सारी सोशल मीडिया के अंदर जो एक मरतबा किसी एक साइट के ऊपर विजिट करते हैं आप, तो दैट ट्रेंड फॉलोज थ्रू। बाइनरीज की जो उनके सारे सिस्टम बने हुए, इट ऑटोमेटिकली चैनल दोस थिंग्स टुवर्ड्स यू। जो व्हाट्सएप के मैसेजेस या एड्स आपको आते हैं, नॉट नेसेसरी कि आपके मोहल्ले में या दूसरे मोहल्ले के अंदर वही एड्स उनको भी आ रहे होंगे, ऐसा नहीं है। जो जिस लाइन के अंदर सर्च किया था, जो जिस लाइन में किसी एक ऐड को 30 सेकंड से लेस, अब तो 18 कर दिया होगा, लेस भी अगर उसको देख लिया हो तो वो रजिस्टर हो जाता है फौरन, फिर उसी के तहत वो ऐड उस तरफ भेजना शुरू कर देते हैं। तो यू ऑलवेज वंडर कि भाई इनको कैसे पता चल जाता है। ये तमाम उन्होंने स्टडी की हुई है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने लगाया हुआ है इसके अंदर। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग दिस फॉर ओन मॉनिटरी गेन, वो इसी व्हीकल को मुसलमानों के इस्लाम को अटैक करने के लिए भी कर रहे हैं। दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। आप जहां तमाम ये गैजेट्स को देख रहे हैं, उसकी मार्केटिंग प्रोफेशनलिज्म को देख रहे हैं, दूसरी चीजों को एडवांस करने के लिए, और डिस्टेंस को खत्म कर ग्लोबल विलेज बना दिया इन्होंने, वही टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर थोड़ा सा ट्वीक करके इस्लाम को भी अटैक कर रहे हैं। उनका मंशा सिर्फ यही है कि मुसलमान उनकी तरफ आ जाए। तो उसके इन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया
तो इतना इंट्रोड्यूस किया इस मामले को कि सारे नौजवान तबका सीक्रेटली वो चीजें सुनने लगा, अट्रैक्ट होने लगा, उनका मेंटल मॉडल लाइफ का वो कैरेक्टर्स बनने लगे और वो जो मुसलमान माहौल में रहते हुए भी अपने जहन के अंदर एक आइडल बना चुके थे कि ये असल लाइफ है, ये सारी चीजें हैं दुनिया में। अगर मजे करना है तो ये जिंदगी को इख्तियार करना है, अगर ये चीज हम नहीं करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं किया, ये इनको पढ़ा दिया गया। जब ये चीज वो पूरे तरीके से हासिल किए तो वो कामयाबी अपनी सेलिब्रेट जब वो समझते थे, जब उन्होंने पैसा लगाया इंडस्ट्रीज को लेकर, तो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट जहां से लिया उनको बताया था कि हमें 7 years का टाइम चाहिए। कितना? 7 years का टाइम इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द पॉजिटिव चेंज। जब ये क्या बताऊं यार, आप लोग समझदार है, बता देता हूं। जब इनकी थिंक टैंक होती है ना, वो ग्रुप को $100s of thousands देकर इम्प्लॉय करते हैं। तो जब उनसे ये आइडियाज लेते हैं, वो आइडिया बनाकर बिजनेस प्लान पेश करते हैं इस ग्रुप को, तो वो ग्रुप उनको पोजीशन में डालकर जिम्मेदारी देता है कि देखो तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्चा किया और उसके बाद तुम्हारा ये रिकमेंडेशन है, क्या गारंटी है कि ये काम होगा? तो वो अपनी गर्दनें बचाने के वास्ते ये कहते हैं कि हमें 7 साल का वक्त दीजिए साहब, ये काम आप अमल करेंगे तो जरूर जरूर आपको फायदा होगा ना 7 साल में? तो हो जाएगा। वो सांस लेकर उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं और वक्तन वक्तन उस प्लान के अंदर चेंजेस करते रहते हैं ताकि वो प्लान को अच्छे तरीके से जो टाइमलाइन उन्हें दिया डिलीवर कर दे, वरना उनके बॉसेस उनसे नाराज हो जाएंगे। Are you ready for the surprise? 7 years वो समझते थे कि एक नया काम करने जा रहे हैं मुस्लिम मुल्कों के अंदर, तो कम से कम उनको 7 साल तो चाहिए ना। तो सेफ्टी नेट उन्होंने बनाया था अपने लिए। Much to their surprise, within 3 years जो उन्होंने मार्क बताया था उससे ज्यादा मुसलमानों ने उस बात को रजिस्टर किया और उसको रिस्पॉन्स किया। वो बोले वाओ, हमें यकीन भी नहीं हो रहा, जो चीज हम 7 साल में कामयाबी की मंजिल तक शायद पहुंच जाएंगे सोच रहे थे, इस मुसलमान नौजवानों ने तो इस बेताबी से इसकी तरफ लपका कि हम वो कामयाबी से 3 साल में सेलिब्रेट कर रहे हैं। What does it tell you? ये आपको क्या बताता है? हम मुसलमान अपने नौजवानों के दिलों में इस्लाम की अहमियत को बिठाने में नाकाम, और वो जो खला जो कामयाबी थी बच्चों के अंदर, जो कमी तड़प थी किसी चीज की, वो इस नाजायज चीजों से भर गई। और ये नामुरादों को कामयाब करने में यही हमारे नौजवान जो हम मुसलमानों के घरों में पले बड़े पैदा हुए, मुसलमान नाम रखने वाले थे, उनको कामयाब बना दिया। जैसे ही वो 3 साल में हुआ, दूसरी और गंदी इंडस्ट्रीज को इन्हें इसी चैनल के तरीके से इंट्रोड्यूस किया और सारे जनरेशन को तबाह ताराज करके छोड़ दिया। That's one thing happened. ये मुहिम उन्होंने कब चलाई थी? 1993 में शुरू हुई। Within 3 years उनको अपनी कामयाबी हो गई। और ये मुहिम चलाने के बाद फिर अब मुसलमानों के दिलों के ऊपर, नौजवानों के दिलों के ऊपर और उनके कानों के ऊपर उनके अकाबिरीन और उलमा की बातों का कोई असर नहीं था। क्यों? वो मस्जिदों को और इस तरह की गैलरी को सिर्फ इसलिए आते थे कि उनके बड़े उनको प्रेशर कर रहे, जाके सुन के आना है, या नहीं तो घर में 10 बातें सुनना पड़ेगा। जाके सुन के आएंगे जस्ट टू से कि भाई वी अटेंड दैट प्रोग्राम। और उनको ये भी पढ़ा दिया गया कि वो मस्जिदों की बातें मस्जिदों की हद तक रखो बस। अगर उन बातों पर तुम यकीन करने लग जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी को जीने के अंदर वो हाइल हो जाएंगे, तुम मजे वाली जिंदगी नहीं जी सकते। एक ये बात इन्होंने की, जब दुनिया की उनके दिलों में मोहब्बत पैदा हो गई, तो अब वो दुनिया जिंदगी की मोहब्बत जब पैदा हो गई, तो ये जिंदगी छीन जाने के वास्ते डर उनके अंदर बिठाकर उनसे बहुत सारे काम कराए। दूसरी बात, आप सब एकेडमिया से ताल्लुक रखने वाले हैं, उस एकेडमिया के ताल्लुक के हिसाब से एक और एक बात कहता हूं, जो पावर उन्होंने रिसर्च करके बताया, कहा कि हाउ एल्स कैन बी कैप्चर मुस्लिम यूथ, और किस तरीके से, एक तो लहू लैब उनको दिखाकर अपनी तरफ माइल कर दे, वो ये तरीका था। दूसरा कहा कंस्ट्रक्टिव मैनर के अंदर मुसलमानों को अपनी तरफ करने का है। वो क्या होगा? भाई यार अच्छी इनकी ये बातों को सुनो ना, इतना कैसा सोच लेते हैं लोग, और हम क्यों नहीं सोचते? हमें वो घन चक्कर में इन्होंने बिजी करके रखा हुआ है, सोचने का मौका ही नहीं दिया, और वो ऊपर से काम करके चले जाते हैं। सेकंड काम उन्होंने जो किया है, आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ
ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ इस्लामिक स्कूल्स। बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से मौलाना हमने तमाम मुस्लिम ममालिक को काट के फेंका, इसलिए नहीं चाहिए हमको, क्योंकि ये सब पपेट है उसी हुकूमत। इनको जैसे ही दावत देंगे, चल पैसे हमारी ऑर्गन्स में इन्वेस्ट करने की लालच में हमारी पूरी मकासद को धो गए। हमने कहा नहीं चाहिए, हम अपनी फंडिंग करते हैं खुद ही। और वो ममालिक जिसके अब हम मेंबर, हमारे पास 42 कंट्रीज हो चुके हैं, वो उन मुल्कों से है जहां पर मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर माइनॉरिटीज में, मगर वो मुस्लिम लीडरशिप कंसर्न लीडरशिप है फॉर द मुस्लिम्स। वो कंसर्न लीडरशिप को हमने इकट्ठा किया इस्तांबुल के अंदर और उनसे बात की कि भाई क्या इसका हल होना चाहिए। और उनके सामने मुझे मौका मिला तो मैंने बात रखी अपनी कि ये प्लान चल रहा है वहां पर, अब उस सुनामी की और एक लहर आने वाली है। वो तो सोशल मीडिया फिर लहू लैब के जरिए से, गाने बजाने के जरिए से, तो एक तरीके से उस जनरेशन को तो खींच के लेके चले गए। उनका अभी पेट नहीं भरा, अब दूसरी तरफ उनकी नजर बढ़ गई है। अब इस मामले में हमें कुछ करना चाहिए। तो वो कौन सी नजर है मौलाना? हमला का सुन लो। उन्होंने ये इरादा किया है कि मुसलमानों के करिकुलम को चेंज कर देना। उनका ऑब्जर्वेशन ये है आफ्टर स्टडी रिसर्च के बाद कि मुसलमान अपने आप को मुसलमान होने से आइडेंटिफाई सिर्फ और सिर्फ उनके करिकुलम की बुनियाद पे कर रहा है, वरना उनके पेरेंट्स से उनके बड़े कोई वो मॉडल आप बाकी नहीं रहे। तो एक तरफ से वो ग्रेजुएट्स होकर हाई स्कूल में आते हैं, टीनेजर्स बनते हैं, तो उनको गाना बनाकर लेके चले जा रहे हैं। तो ये साइकिल क्या चलते रहेगी हमेशा, उनकी फिक्र देखिए आप। तो इसका मतलब ये है कि मदारिस स्कूल अच्छे मुसलमान बना के लेके आएगा, हम भी मिलियंस ऑफ डॉलर लेके आके उनके जहन को चेंज करेंगे, फिर उनको माइंड चेंज करके अपनी तरफ लेके आएंगे, तो हमारे रिसोर्सेज चलते जाएंगे। तो इसका तरीका क्या होगा? कहा कि भाई जो फीड कर रही है ये नहर, इस नहर को पलीत कर दो बिल्कुल, उस नहर का ही नका काट दो, खत्म। तो फिर अब हमको गाने बजाने से उनको खींचने की जरूरत नहीं है, पैदा ही नहीं होंगे वो। तो क्या तरीका है? तो उन्होंने कहा कि इनके करिकुलम, इनके स्कूल सिस्टम को अडॉप्ट करो। तो क्या करना चाहिए? कहा कि उनके करिकुलम के अंदर ये किताबों में पढ़ाया गया है कि एक मिसाल दे देता हूं, वो हदीस आपको याद होगी, क़यामत के अंदर क़यामत में पहाड़ और दस्त चिल्ला चिल्ला कर कहेगा, ऐ मोमिन आ मेरे पीछे, काफिर और यहूदी बैठा है उसके पास। आप लोगों ने सुनी है ना उस हदीस? जहां पढ़ा गया सुनी हुई, इसलिए कि आप लोगों को पता है। तो इन्होंने कहा कि यहूद और नसारा के सिलसिले में इनके दिल में नफरत पैदा हो रही है, इसलिए नहीं कि उनका कोई हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ हो कभी, हम में से कई ऐसे कभी यहूद को देखा ही नहीं, इसके बावजूद भी यहूद को हेट करते हैं। क्या मतलब भाई? हम में से कई ऐसे हैं जिसके साथ कभी नसारा का इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, कोई उन्हें पर्सनली धोखा ही नहीं दिया, उसके बावजूद भी हमको दुश्मन समझते हैं, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा इसलिए कि उनकी किंडरगार्टन की, उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड की किताबों के अंदर, कहानियों के अंदर ये चीजें लिखी हुई है। अच्छा, वो कहां से आई? कुरान। अच्छा, कुरान में भी हमारे, अच्छा, तो कुरान में से आयतों को निकालने की कोशिश तो उन्होंने कोशिश की, इस सिलसिले में नामुराद हुए। तो कहा ठीक है, कुरान को तो बाद में निपट लेंगे, पहले इन किताबों में तो आओ। तो कहा कि चलो किताबों से ये चीजों को निकाल दिया जाए। बगैर नाम लिए कि मुल्क का जिम्मेदारी के साथ बता देता हूं आज, अल्लाह से उम्मीद है कि किसी एक के दिल में मेरी बात पहुंच जाए और वो अपनी जगह से ये इरादा करके उठे कि ये काम मैं कभी नहीं होने दूंगी अपने जीते जी, और इसको रिवर्स करूंगी और दीन को फिर से कायम करूंगी अपनी जिंदगी में और अपने हल्के में, और इसके एक्टिव दाइया बन जाऊंगी। ये इरादा पैदा हो जाए तो मैं इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाऊंगा। आज का बहुत बड़ा रिस्क लेके बात कर रहा हूं, मगर ले लेता हूं। तो उस मुल्क के करिकुलम को इन्होंने पढ़कर रिकमेंडेशन पेश किया, कहा कि ये जगहों पर, ये सफात के अंदर, ये चीजों के अंदर ये बातें पढ़ाई जा रही है। हमारा असेसमेंट ये है कि ये चीजें पढ़ाने की वजह से डायरेक्टली उनका नेगेटिव ओपिनियन हमारे सिस्टम में हो रहा है। तो काफी इसका हल निकालो, कोई निकाल देंगे ऐसा कुछ वक्त, और हाँ तुम्हें मिल जाएगा तुम्हें जो कुछ चाहिए। प्रोजेक्ट फिगर नहीं करो। अब उनको पता चल गया कि इनकी गुड्डी हड्डी तो निकालो जितना, वो पैसे की चक्कर के अंदर सारे का सारा बेड़ा पर। तो क्या किया उन्होंने? करिकुलम उनको रिकमेंडेशन अपनी बनाकर पेश किया उस मुल्क के एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। ऊपर से इजाजत मिल गई, जाओ जाके बात करो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से,
सुन लीजिए मामा, जब वो डिपार्टमेंट के पास ग्रीन सिग्नल मिल गया था ऊपर से, तो ये पहुंचे दरवाजे पर, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बैठा रहा ऑफिस में। वो उनका डेलीगेशन आया, अंदर आने के बाद उनको सीट पे बिठाया गया, पूछा गया कि भाई कैसे तशरीफ हुई आपकी, क्या मकासद है, कैसी खिदमत की जाती है आपकी। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस थोड़े से रिकमेंडेशन थे, आपके आला हज़रत चाहते हैं कि कुछ एडवाइसमेंट हो और फराग ज़हनी आपके बच्चों के अंदर पैदा हो, तो हम चाहते थे कि कुछ रिकमेंडेशन। हाँ हाँ जरूर पेश कीजिए। तो उन्होंने एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, उन्होंने अपने रिकमेंडेशन टेबल पे डालने शुरू किए। तो उन्होंने कहा कि ये तो हो जाएगा, ये नहीं, इस मामले में तो बाद में बात करेंगे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो जो बाद में बात करेंगे तो वो तो असल पैकेज था, वो सैंडविच बना के दूसरी चीजों को बेचना चाहते थे। उन्होंने कहा यार ये तो असल जिसको हम चेंज करवाना चाहते तो इसका डिपार्टमेंट नहीं है बोल रहा। तो उन्होंने कहा कि हजरत पे इसका क्या होगा? उन्होंने कहा ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, ये तो मुतव्वों का है, ये तो मौलवी हजरत डिसाइड कर सकते हैं, इस मामले में हम हाथ ही नहीं लगा सकते। अच्छा, फिर उनसे बात करा दीजिए ना। हाँ, दोबारा मीटिंग तय कर देंगे तो उसी की बात हो जाएगी। तो दोबारा जब मीटिंग हुई तो माशाअल्लाह तो उन्होंने देख लिया कि यहाँ दाल मिलने वाली नहीं। फिर भी उन्होंने कहा कि भाई ऊपर से आया तो कैसा नहीं मानते। फिर उन्होंने उनको पेश किया कि भाई ये तो कुरान और हदीस की डायरेक्ट ऑथेंटिक रिवायत है और एक जमाने से चली आ रही है, इसको भी चेंज किया जा सकता है। ये तो बोल वाले तो मैंने हजरत को रिकमेंडेशन पेश करने के लिए कहा गया था, तो हमने पेश किया। अगर आपको मंजूर नहीं है तो कोई बुरी बात नहीं है, हमने तो अपना मशवरा पेश किया था। बाकी फिर इजाजत दीजिए, चले चलते हैं। यानी गाली भी देते हैं, बड़ी मुस्कुरा के देते हैं हमारे वहाँ, गला भी काटते हैं तो बड़ी मोहब्बत से। मीटिंग शुरू से हाल का नाम कोई फिक्र की बात नहीं। इट वाज रियली नाइस मीटिंग हजरत, रियली नाइस मीटिंग। हैव सम टी? यस यस यस, व्हाई नॉट। खाओ भी पी लेंगे, कभी भी खा लेंगे, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। बात दरअसल होने की गलती चल गई। अब वो पहुंच गए वापस, क्या काम हुआ, क्या हो गया? कौन से फिर अब्बास की बात पहुंची, आपको तो कहा काम हो जाएगा, काम नहीं हुआ। हाँ, ये कैसे मुमकिन है? किसने जुर्अत की रोकने से? क्या बोल सकते हैं, आप ही तक कर लीजिए। बोले क्यों बुरे हो, क्यों भाई? माफी चाहता हूँ, आपको कीमत भी नामुराद वापस करना इस दफा ऐसा नहीं। तो दोबारा जनाब वापसी हुई भी 3 माह के बाद। ये डेलीगेशन जब पहली दफा पहुंचा था तो ऑफिस में उनका प्यून उनको बुला कर लेकर आया था। इस दफा एजुकेशन मिनिस्टर दरवाजे के बाहर जाकर उनको रिसीव किया। हजरत आप ही का तो इंतजार था, तशरीफ लाए। लेकर आकर ऑफिस में बिठाया, हुक्म कीजिए। पेश किया जाता है कंसीडर इट डन। कंसीडर इट डन क्या मतलब? हो गया समझो, दो राय नहीं है उसके अंदर। आप सिर्फ हुक्म कीजिए हजरत, डन डन डन। और कुछ जी नहीं, नहीं और कुछ भी अगर है आप जरूर बताइए। हाँ इंशाल्लाह ताला भी अच्छी। उनके जॉ ड्रॉप हो गए। बोले यार ये तब्दीली इतना तेजी से हम कभी नहीं सोचे थे, ऐसा क्या हो गया? गेस कर सकते हैं आपको क्या हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ऊपर से चेंजेस हो गए। जो पहले था उसको मौतल बजामा, तो सारा डिपार्टमेंट चेंज। बताया गया कि भाई मुल्क को मैं तरक्की की तरफ ले जाना चाहता हूं और रुकावट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। हालांकि तो कुरान किसी भी कीमत पे कह दिया ना, हदीस किसी भी कीमत पे कह दिया ना, किसी भी कीमत पे कह दिया ना। 3 तलाक हो गए पूरे उस डिपार्टमेंट में। रिटर्न की कोई गुंजाइश नहीं। तब ये डेलीगेशन जब वापस आया हमारे यहाँ, हो गया काम जी, इस दफा तो भाई क्या पता देखे। अच्छा तो बता, तुम्हारे रिकमेंडेशन से तुम्हारा क्या तवक्को है? अब आ रहा हूं असल मुद्दे पे, आप लोगों के ऊपर। उन्होंने कहा हजरत अब जो इस मतलब हम आपको तजवीज पेश कर रहे हैं, इसको सिर्फ आप 15 साल दीजिए,
15 साल, जी 15 साल, इस दफा तो पूरे 15 साल देना ही पड़ेगा। और ये एक मरतबा 15 साल दे देंगे तो फिर नहीं करना पड़ता ऐसा। तो फिर 7 साल मांगे थे, 3 साल में डिलीवर हो गया, ये पूरे 15 साल लगेंगे। काम बदला तो ठीक है, तो क्या करके आएंगे आप? बोले हजरत तो किताबें ऐसी पढ़ाए उनको तो किताबों से वो रहेंगे नाम के मुसलमान, पहनेंगे कपड़े मुसलमानों के, मगर उनकी मेंटालिटी और थिंकिंग सारी हमारी होगी। आप इशारा करो नाचेंगे, लब्बैक कर आपके पास आ जाएंगे और हर चीज के ऊपर वो फौरन वेलकम करेंगे। क्या ये बच्चों के साथ इतनी बड़ी उम्मीदें कैसी लगेगी? ओल्डर जनरेशन है ना, अब 40 और 20 के दरमियान में जितना है ना, अपनी माश के पीछे लगा हुआ है। बिलो 20 जितना है ना, हमने अपने करिकुलम में उनको पास किया। 20 साल अब जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं, हमने जो करिकुलम तैयार किया वो 5 साल अबव का है। तो आज जो 5 साल का बच्चा है, 5-6 साल का, 15 साल के बाद 20-21 साल का हो जाएगा और हमारी बनाई हुई किताबों के ऊपर ट्रेन होकर आपकी लैंग्वेज और आपकी बातों पर लब्बैक कहने वाला, और जब उससे आप जो चाहे करवा लीजिए, जो चाहे आप हुक्म कीजिए, बस ऐसा ट्रेन होकर आएगा वो रोबोट। ठीक है, देख लेते हैं, उसका भी टेस्ट हम कर लेते हैं। हाँ, अल्लाह हिफाजत। बड़ी जुर्रत और रिस्क लेकर ये बातें करनी होती है, मगर किसी को तो करना पड़ता है। तो वो जनरेशन जब उस करिकुलम पर पढ़कर फारिग हो गया, तो उसका टेस्ट करने के लिए एक कॉन्सर्ट मुनाकिद की गई उनके कैपिटल में, कंट्री के कैपिटल के अंदर। नाम दे रहा हूं, उस वक्त भी उनका ये ख्याल था कि ये कॉन्सर्ट हम करेंगे तो शायद कुछ माहौल को बनाएंगे हम, तो चलते 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 हवा पकड़ लेती है। तो मच टू देयर सरप्राइज अगेन एडवर्टाइजमेंट उसका हुआ और उसकी बुकिंग, कॉन्सर्ट की टिकट खरीदने की जब खुली, विद इन फर्स्ट आवर के अंदर सारी कॉन्सर्ट सोल्ड आउट, सारी कॉन्सर्ट सोल्ड आउट विद इन फर्स्ट 1 आवर। उस वक्त ये ग्रुप फिर से अपने बॉस के पास पहुंच के बोला, जरा तहकीक कर ली थी, टिकट खरीदने वाला 19 से 21 साल का तबका है, उससे तुम्हारा क्या मतलब? हजरत ये वही बच्चे हैं जिसको हमने करिकुलम में तैयार किया था आपके लिए। आज हम आपको अपनी कामयाबी का और एक सबूत पेश कर रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कंप्लीटली हथियार किया। ये बात इसलिए बताया आपको कि मुनज़्ज़म तरीके से हमारे करिकुलम को भी हाईजैक कर लिया गया है और उसको चेंज करके हमें उसका गुलाम बना दिया गया इस दुनिया में। ये 2 बातें, मैं मनफी बातें, ये नेगेटिव बातें कह रहा हूं, तो आप लोग उसको आज़ादा करना होगा। अच्छा, इससे मुझे ये बताया गया तो मैं बता रहा हूं। तो देखो, मेरी इन बातों से ये नहीं होना आप लोग के पास कीमत हो जाए। अच्छा, चूंकि मुझे टॉपिक ये दी गई कि भाई गैर मुस्लिमों की क्या साजिशें हैं, वो मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कामयाब और हम नाकाम हो गए। कामयाबी तो कामयाब लोग बताएंगे आपको इंशाअल्लाह, और बता भी रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज है। और खुदा के दीन के अंदर कभी नाकामी होती ही नहीं है, हमेशा कामयाबी रहती है। मैं सिर्फ बता रहा हूं उनकी नाकामियां कितनी है। तो इन्होंने इस तरीके से हमारे सिस्टम को अडॉप्ट करने की कोशिश की है। एक्सीडेंटली नहीं हुआ, दानिस्ता तौर पर मिलियंस ऑफ डॉलर के इन्वेस्टमेंट के ऊपर हुआ है। और ये जिस तरह मैंने कहा, ढाका उसी तरफ डाला जाता है जहां पर कोई कीमती चीज होती है, तो सब कुछ छोड़कर सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही क्यों ये चीज हो रही है। तो उन्होंने ये देखा कि मुसलमान जैसे बिल्कुल मजबूत यकीन रखने वाले यहूदी भी हुआ करते थे इब्तिदा में, और बात तो इतने मजबूत उनके अपने यकीन के अंदर रहे कि वो अपने अना की और अपनी खुदगर्ज चीजों के ऊपर भी इतने मजबूत हो गए
कि बाद में ईसा अलैहिस्सलाम आए तो भी उनको भी मानने से इनकार कर दिया। मगर रिफॉर्म ग्रुप जो उनके आते रहे, बदलते रहे, तभी तब्दीला। उसके बाद ईसाई ग्रुप आया तो ईसा भी अपनी जगह कायम रहने की कोशिश करे, उनके अंदर भी काफी तब्दीलियां आ गई। तो उन्होंने देखा कि दोनों पीपल ऑफ द बुक अबव मुस्लिम्स, यहूद और नसारा, अपने आप को आइडेंटिफाई तो करते हैं मजहब से, मजहब की उनके अंदर जो अहमियत होनी चाहिए वो नहीं है। उन्होंने मजहब को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अडॉप्ट किया हुआ है। जब चाहो उसको अडॉप्ट कर लो, जब चाहो छोड़ दो। तुम्हें जब तक अच्छा लगता है मजहब को फॉलो करो, जब तुम्हारे ऊपर मजहब वबाल बन जाए तो छोड़ दो, तुम्हें इख्तियार है। ये उनको घोलकर पिला दिया गया और ये चीज उन्होंने देखा कि मुसलमानों में नहीं है। मुसलमान कहता है कि जो लिखा है, जैसा बताया गया, उसको वैसे ही अमल करना है और उसी का नाम इस्लाम है। और उसके अंदर किसी भी किस्म की तब्दीली कर देंगे तो अल्लाह और रसूल के आगे वो काबिल कबूल नहीं है। ये बात उनको बड़ी खलती है। और जब तक मुसलमान अल्लाह और रसूल के अहकामात के ऊपर जिस तरह बताया गया अमल करते रहेंगे, अल्लाह की मदद हमेशा उनके शामिल हाल रहेगी और अल्लाह की नुसरत हमेशा उनके साथ रहेगी। जिसका नासिर और हामी अल्लाह हो जाएगा, क्या कभी वो नाकाम हो सकता है? हरगिज नहीं। इसी वजह से उनको ये बात की तकलीफ थी कि अगर हम किसी को नाकाम नहीं कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सच्चे और पक्के मुसलमान को ही नहीं कर सकते हैं। तो सच्चे पक्के मुसलमान के ईमान के अंदर तजब्जुब पैदा करने का तरीका क्या है कि उनको शुरू से ही ईमान की और इस्लाम की तालीमात से दूर कर दिया जाए। तहरीफ तो नहीं कर सकते, रात को उल्टे भी लटक जाएंगे तो नहीं बदल सकते। क्यों? अल्लाह ने कुरान में नाजिल किया है, क्या कहा? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। हमने ये जिक्र को यानी कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। वही बात फिर अल्लाह हय्य ला यमूत के साथ जब आप जुट जाएंगे तो आप भी हमेशा हमेशा रहने वालों में से हो जाएंगे। हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग हमारी बातें याद करेंगे और हमारी मिसालें दे देकर राह रास्त पर आएंगे। राइट? इसी तरीके से अगर अपनी हिफाजत चाहते हो तो कुरान के साथ अपने आप को जोड़ लो। जिस तरह अल्लाह कुरान की हिफाजत करने का वादा किया, कुरान वालों की भी हिफाजत करेगा। ये राज पोशीदा है जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर आप लोग को समझ में आ जाएगा तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगियां कभी जाया नहीं हो सकती और किसी की नाकाम साजिशें आपके ऊपर असरअंदाज हो ही नहीं सकती। जिस तरह अल्लाह ने कुरान के आगे उनकी तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया, आपके आगे भी उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? अच्छे तरीके से देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत दो बातें बताते रहे कुरान के अंदर। आप देख लीजिए, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर देख लीजिए, दो बातें बड़ी अच्छी मुझे समझ में आई जो मैं शेयर करना चाहूंगा। इस्लाम में मैंने देखा जिसका ईमान मजबूत हो जाता ना, उसके लिए वो शेर है ना, क्या था वो, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, सरकार ने खरीद कर अनमोल कर दिया। जब तक किसी के नहीं हुए थे ना, कोई पूछता ही नहीं था। जब अल्लाह के हो गए ना, हम किसी की नहीं चली हमारे हाथ, ऐसे मजबूत हो गया। कोई हमारी कीमत ही नहीं लगा सका, कोई हमारे ईमान का सौदा कर ही नहीं सकता। किसी के अंदर दम ही नहीं है कि हमारे ईमान की कीमत लगा दे। अल्लाह के होके तो देखो, आप घुटने टेक देगी दुनिया आपके आगे, और ये हमेशा होता रहा है। तो ये मैंने जाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मकाम पैदा कर दिया। और सहाबा में से भी इलीट ऑफ द कुरैश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गुलाम जो ईमान लेकर आए थे, मगर जब उनको अल्लाह ने खरीद लिया ना तो कुफ्फार मक्का भी उनकी कोई कीमत नहीं लगा सके। बिलाल हबशी के ऊपर इतने मजालिम करने के बावजूद भी उनके मुंह से अहद अहद को नहीं रुका सके। क्यों? जब वो लज्जत, वो अहमियत और वो ताल्लुक मा अल्लाह पैदा हो जाता है ना, तो इंसान कहता है जाए जहन्नम में यार,
ये तो मैं कभी किसी कीमत पे भी नहीं छोड़ूंगा। ये चीज पैदा हो जानी चाहिए हम सबके अंदर। ये इरादा करें कि हम भी ऐसे मुसलमान बने और हमारी कौम से पैदा होने वाला हर इंसान ऐसा ही बनेगा, बल्कि मुजाहिद बनेगा अपने वक्त का, सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगा। ये आज़म लेकर आप पैदा हुए और आगे बढ़िए, देखिए फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कैसा इस्तेमाल करता है इस्लाम के अंदर, और फतेह और कामयाबी आपके कदम चूम के ही रहेगी। क्यों? अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या है? शैउन कदीर है, हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाले हैं। जब आप उनके हो जाएंगे, उनके ऊपर यकीन रखकर काम करेंगे, दुनिया आपके कदमों में आकर ही रहेगी। ये एक बात मैंने देखी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान को जमा दिया था। दूसरी चीज बड़ी प्यारी और पॉइंट बी नोटेड, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर focus on the quantity, rather he always care for the quality. That could be a question. Quantity versus quality, that matters the most. एक हो, सही हो ना तो कर देता काम, 100 भी है नाकाम है तो बह के चले जाते, मगर वो एक बनना और बनाने से बनता है, और वो एक होगा तो वो नेक भी होगा, और वो एक होगा तो वो एक अल्लाह पर यकीन रखने वाला भी होगा, वो एक होगा तो वो एक काबे के डायरेक्शन को मानने वाला होगा, वो एक होगा तो वो एक कुरान को पकड़ के चलने वाला होगा, और वो एक से ही दुनिया डरती है, और वो एक आपको बनने में दी, और हमारी कोशिश होना है कि वो एक हम बन के रहे, वो इज्जती हमारे अंदर होनी चाहिए, वो क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। अब जब वो क्वालिटी हमारे अंदर आ जाएगी ना, all I need is this present individuals, whatever the number that present here today, if every one of you ये इरादा कर लिए कि वो एक नेक मैं बन जाऊंगी, तो बस काफी। आज इस ग्रुप से निकलने वाला हर शख्स ये सोच ले कि मैं अपने ईमान का कभी सौदा नहीं दूंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे इस्लाम से दूर नहीं कर सकती। ये इरादा कर लीजिए, दिल ही दिल में मान लीजिए इस बात को। अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू आपकी धड़कनों से वाकिफ है, जब उन्हें उसको कबूल कर लेगा तो फिर देखना आपका इसी लम्हे से आपकी मकबूलियत शुरू हो जाएगी। वरना इमाम मूसा की क्या अहमियत है भाई, क्या अहमियत है, क्या हैसियत थी, क्या वक़्त है इनकी? ये सारे का सारा क्रेडिट जाता है तो कुरान और अल्लाह और उसके दीन के वास्ते अपने आप को डेडिकेट करने की वजह से। वरना मैं सबकी तरह इंसान, मेरा वासी भी सबकी तरह है, मेरे भी इधर भी इसी तरह सबकी तरह कमजोरियां हैं, खामियां हैं, बावजूद इसके अगर काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है, और मैं समझता हूँ वो सिर्फ इस वजह से कि हमारे बड़ों ने हमारे ऊपर मेहनत की और उनकी दुआएं हैं। मेरी अपनी काश भी कुछ भी नहीं दे सकती, ये बड़ों की हुई मेहनतों का फल मैं खा रहा हूं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी बाद वाली नस्लें करें तो मुझे मेहनत करनी हो, आप लोगों को वो मेहनत करने का आज़्म और इरादा कर कर उठना होगा। यहां से जो कुछ आप लोगों को बताया जा रहा है, आपके मुल्क के अंदर के हालात आप बेहतर जानते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। चैलेंजेस को कैसे डील करना वो आप लोगों को पता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। इस मामले में कुछ भी मेरे पास कर सकता, उसको कैसे हैंडल करना है वो भी आप लोगों को करना होगा। मगर एक बात यूनिवर्सल जरूर है इस्लाम के अंदर, वो यह है किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल, अल्लाह की किताब और हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इसके अंदर हमारे पास ये फॉर्मेलिटी हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज होने दीजिए, कुछ भी होने दीजिए, इस चीज के ऊपर हम एक जगह जमा हो सकते हैं और ये चीज हो सकती है। तो ये चीज हमारे अंदर आ जाएगी तो हम ये काम कर गुजर सकते हैं। तो दूसरी बात, क्वालिटी और क्वांटिटी वर्सेस की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर क्वालिटी की बात करते हैं। क्वालिटी इंसान अगर हम में से सब बन जाए तो मैं एक दरख्वास्त करूंगा आपसे, जो मैं हमेशा अपने ग्रुप में करता हूँ, वो ये कि हर शख्स यहाँ पर यह इरादा करे कि मैं अपनी जिंदगी में तो जो कही भी बातें हैं उसको लाजमी तौर पर तब्दील लाने का वादा करती है। सब करेंगे इंशाअल्लाह। ये तब्दीली आज से हो जानी चाहिए,
ख्वाह उसके लिए कितने भी मशक्कतों का सामना करना पड़े। हम ये करेंगे, ये बात क्या मेरा अपना मशवरा है? नहीं। और एक के अंदर आखिरी रुकू की आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल देकर फरमाया, उन्होंने अपने औलाद को बुलाया और बुलाकर वादा लिया उनसे कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, वसीयत की उनको, और उन सब ने कहा अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू की इबादत करेंगे। तो ये ट्रेडिशन थी, मैं समझ गया। अच्छा, तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी का तकाजा है कि सिर्फ बयान करके चले जाने से एक कान से दाखिल होगी दूसरे कान से एग्जिट। तो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझकर क्या करना होगा, कुरान से अखज़ कर उसको इंप्लीमेंट करना है। तो ये पता चला कि ह्यूमन साइकोलॉजी ये डिमांड करती है कि आप जो बात कह रहे हैं उसको प्रोसेस करके प्रैक्टिकलिटी को विजन कर ले। तो जो बातें आज मैंने ये बात कही कि भाई क्या ऐसा कभी वक्त हम पे आ सकता है कि कोई कामयाब हो जाएगा हमसे हमारा इस्लाम छीनने के लिए? होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, किसी भी कीमत में नहीं होगा। पक्का? अगर आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी तब भी नहीं, अगर आपकी जायदाद आपसे छीन ली जाएगी तब भी नहीं, अगर आपकी जान पे भी बनाए तब भी नहीं। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, मगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये हालात भी कभी नहीं होने देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी जान पे भी बननी आएगी, आपकी जायदाद भी नहीं छीनी जाएगी, आपकी नौकरी भी नहीं जाएगी। क्यों? आपने अपने आप को अल्लाह के हवाले किया और कुरान के साथ ताल्लुक पैदा कर लिया। तो जिस तरह कुरान को अल्लाह हिफाजत करके रखा हुआ है, आपकी भी इसी तरीके से हिफाजत करेगा। ये राज है। मगर अल्लाह चाहता है कि तुम तैयारी तो करके दिखाओ, वक्त आएगा तो ये भी कर लूंगी अल्लाह ताला, मगर जान जाए मगर ईमान नहीं जाएगा, ये अल्लाह को सुना दीजिए। फिर अल्लाह इतना खुश होता है इस बात से, मैं बयान नहीं कर सकता। और आप अल्लाह के बहुत पीर बरगुज़ीदा बंदी बन जाओगे। और अल्लाह को जिससे मोहब्बत हो जाती है वो अल्लाह कभी उसको ज़ाहिर होने नहीं देता। आप ही देख लीजिए, आपके वालिदैन आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, आपके लिए इतनी धूप के अंदर जाकर मेहनत कर लेकर आते हैं। आपको एयर कंडीशन वाला या फिर एयर कूलर वाला या फिर फैन जो भी इस्तेमाल है उस हिसाब से आपको छांव में रखकर इज्जत की रोटी देने की कोशिश करते हैं। जो कुछ उनको डील करना पड़ता है बाहर करते हैं, मगर आपकी जरूरियात को पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्या आप उनके ऊपर गन लगा के बैठे हुए हैं? नहीं ना। चाकू लेके बैठे हुए हैं? नहीं। क्या आप मुतालबा करते हैं? नहीं। फिर भी वो क्यों करते हैं? आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको अपना समझते हैं और ये जानते हैं कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। एक बंदा जब ये एहसास रखता है कि जब कोई मुझ पर डिपेंडेंट हो जाए तो मैं जिम्मेदारी महसूस कर उसकी जरूरतों को पूरा करना ये मेरी जिम्मेदारी है। जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो वो मोहब्बत का तकाजा यह है कि उसकी जरूरतों को पूरा करना, गो को अपनी जान को जोखिम में डालना पड़े और गर्मी की तपिश में लोगों की गालियां सुनना पड़े, लाख चैलेंजेस करना पड़े, मेहनत करके मैं कमा के लिए क्या हूं, जरूरतें इनकी पूरी करूं। और ऐसी जरूरतें जो वो नहीं मानते तब भी उनको दे देकर उनकी खुशी चेहरों पर देखकर बस खुश हो जाऊं। एक इंसान इतना सब कुछ कर सकता है जब मोहब्बत किसी से करता है। तो आप सोच लो, जब अल्लाह के प्यारे बन जाओगे तो खालिक के कायनात क्या कुछ करेगा आपके लिए। जो खालिक का हो जाएगा, क्या खालिक कभी उसको जाया होने देगा? मां मरती मर जाएगी, अपने बच्चे के ऊपर आंच आने नहीं देती। छोटी सी मुर्गी की मिसाल ले लीजिए, चील से वो मुकाबला नहीं कर सकती, उसको ये मालूम है। उतनी उड़ान नहीं बढ़ सकती, उसको ये मालूम है। उसकी चोंच का वार बर्दाश्त नहीं कर मर जाएगी, उसका यकीन है। बावजूद इसके जब कोई इसकी बच्चे की तरफ लपकती है तो कैसा उड़ के चले जाती है, अपनी जान को परवाह किए बगैर अपने उस चूजे की हिफाजत में निकल जाती। एक माँ जो इंसान भी नहीं जानवर है उसकी मोहब्बत का यह हाल है, तो माँ वो जो इंसान है उसकी मोहब्बत का क्या होगा सोचो। और ऐसी माँ की 70 माओं की से ज्यादा मोहब्बत करने का वादा मेरे हबीब ने किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत करता है हर इंसान से। अब जब वो मुसलमान हो तो अल्लाह की मोहब्बत का क्या अंदाजा होता होगा सोचो। और जब वो
मुसलमान अल्लाह को अपने हवाले करने का ऐलान करता है तो अल्लाह की मोहब्बत क्या क्या इंतहा होगी उनकी, सोचिए। और जब वो मोहब्बत आपकी मुहाफिज हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत भी आपका बात भी बेकार नहीं कर सकती। इस यकीन के साथ अल्लाह के नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, फिर देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे आपकी मदद करता है और कैसा बातिल को आपके कदमों में लाकर डाल देता है। और ये बातिल हमेशा नामुराद होने के लिए है और नामुराद होकर ही रहेंगे। अब तक का तो मैं डिफेंसिव बात कर रहा था, राइट? थोड़ी सी वक्त आ गया है तो उसके ऊपर बात करना है। अब तक का की जो बातें थी वो क्या थी? अपने आप को मजबूत बनाने की और अल्लाह के साथ ताल्लुक को जोड़ने की और ये यकीन को पैदा करने की कि हमें कोई नुकसान कभी पहुंचा ही नहीं सकता। अब जब इतनी कीमती चीज आपके पास है तो एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। अब आपकी फीलिंग्स कैसी है? हाउ डू यू फील नाउ? यू फील स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, इंकरेज्ड, मोटिवेटेड, कॉन्फिडेंट? ये तमाम चीजें हैं जो उनको नहीं पसंद है मुसलमान के अंदर और जो एक ही लेक्चर के अंदर आपके अंदर पैदा हो। ये कमाल मूसा का नहीं है, ये रब्बी मूसा के कलाम का है, नबी मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का है। ये तालीमात हम तक नहीं पहुंची थी, आज जब पहुंच गई है इस तरीके से कि हमारे अंदर रेजोनेट हो गई तो ये कमाल पैदा हो गया। ऐसे कई मौके हमारी जिंदगी में आए, कई लेक्चर हम पहले भी सुने हैं। ये कैफियत अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई थी पता? हमें ये जुस्तजू, ये इरादा नहीं था। आज जो इरादा लेके बैठे हैं ना आप लोग, क्या लेके बैठे? ये तब्दीली हमने आएगी और हम इसके नुमाइंदा बनेंगे। अब जब अपने आप को बना लिया तो अब एक और एक काम करने का बाकी रह गया। वो क्या है? आप लोग अनअपॉलोजेटिक मुसलमान तो बन चुके हैं, है ना? कभी भी अपोलोजाइज नहीं करेंगे, आई एम सॉरी दैट आई एम मुस्लिम। नो, आई एम प्राउड टू बी मुस्लिम। दैट्स व्हाट इट इज। माशाअल्लाह, दैट्स द पोजीशन। फख्रिया मुसलमान होना है। अपने आप के मुसलमान होने पर फख्र कीजिए, हिजाबी होने पर फख्र कीजिए, निकाबी होने पर नाज कीजिए। वाई? कोई कमजोर पर्सनालिटी रखने वाला कभी इतना बड़ा अज़्म नहीं ले सकता। कुर्बान जाए वो मां बहनों के ऊपर से जो भरी पब्लिक के अंदर निकाब लगाकर घूमती फिरती है फख्र के साथ। मैंने इन आंखों से देखा है टोपियों को जेब में रखते हुए, दाढ़ियों को शेव करते हुए। मर्दों के अंदर भी वो कुव्वत नहीं है जो हमारी मां बहनों के अंदर है। इसी वजह से ये कुफ्फार हमारी मां बहनों के दुश्मन बने हुए हैं। इनको पता है असल ताकत कहां पोशीदा है। वो मेरा खुदा मुझे बहुत याद आता है। वो एक स्टूडेंट ने हिजाब के सिलसिले में जो हुआ था ना यहाँ पर, ओ क्या बात। मैंने तो एक ही बात कही, प्रिंसेस डायना के सिलसिले में भी सॉरी मुझसे निकल गया मस्जिद में। एक बात मैंने कही थी, वो भी बड़ी वायरल हुई थी। ये कहना चाह रहा था, मैं कुछ और नहीं बात करना चाहता। उसको लक़ब मिला था ना पीपल प्रिंसेस बोलकर। हाँ, दुनिया ने उसको पीपल प्रिंसेस का लक़ब दिया था। पता है क्यों दिया? वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाकर बड़ी बीमार और खस्ता हालत, जिसके कपड़े भी ढंग से नहीं होते थे, सब चीजें इधर बैठी रहती थी, उनको भी गोद में उठा लेती थी। तो क्वीन कहती थी कि हमारे आला मर्तबे के लोगों को ये क्या बोलते हैं, सेवा नहीं देता, गलत नहीं देता, तुमको अपना प्रोटोकॉल मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मुझसे नहीं हो पाता। मेरा दिल में उनके लिए दर्द है तो मैं बस मारे तड़प के उनको उठा लेती हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो इंसान है, उनके दर्द को दर्द समझना चाहिए। तो वो इंसानियत के साथ हमदर्दी करने की वजह से उसको ये टाइटल मिला था पीपल्स प्रिंसेस। मरती मर गई, आज उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं पता? हम उसने इस्लाम की एक चीज को इम्ब्रेस किया, वो मुसलमान नहीं थी, इंसानियत का दर्द दिल में रखा था उसने, जो मेरे आका के सीने में भी था। हुआ रहमतुल लिल आलमीन, आका आलमीन के लिए रहमत बना के पेश किए गए थे, इसीलिए हर एक का दर्द देख के दिल में रहते थे और उनके लिए दुआएं करते थे, उनको अल्लाह के रास्ते में बुलाकर उनकी आखिरत को संभालने की कोशिश करते थे। वो थोड़ी सी झलक इसके अंदर आ गई तो उसको पीपल प्रिंसेस का लक़ब मिल गया दुनिया के अंदर। अगर सारी जिंदगी आका की हमारी जिंदगी में आ जाएगी तो हमारा क्या मकाम होगा, सोचिए।
ये चीज होनी चाहिए, ये इस्लाम नवाजता है, ये चीज होनी चाहिए। तो दूसरी बात निकाब वाली लड़की की मैं कह रही, हिजाब वाली लड़की की मैं कह रहा था, ऐसे तो कई हिजाबी होंगे, ऐसे तो कई हिजाबियों के साथ जुल्म हुआ होगा, ऐसे तो कई हिजाबियों ने अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर दिया होगा। ये एक हिजाबी की खास बात जो मेरे को लग गई थी, जो मैंने अपने खुतबे में कहा था, वो ये था कि बौखला गई, वो परेशान हो गई। देखा कि जब कोई और उसको मदद करने वाला नहीं है, तो ऐसे हाल में वो जिसके लिए हिजाब ली थी उसको पुकार उठी। उसने क्या कहा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहना शुरू कर दिया। वो अल्लाहु अकबर कहना अल्लाह के अर्श को हिला दिया होगा। अल्लाह ने देखा कि मेरे खातिर दुश्मनों के ग्रुप के अंदर एक अकेली तनी तन्हा मुझे पुकार रही है, मेरे इज्जत और जलाल की कसम, मैं इसको आज इसका नारे को ऐसा बुलंद करूंगा सारी दुनिया इसके नाम से वाकिफ हो जाएगी। सारी दुनिया ने देख लिया। क्यों? वो एक ऐसे नाजुक मुकाम पर यकीन कर लिया कि यहां अगर कोई बचा सकता तो मुझे अल्लाह बचा सकता है, मैं उसके नाम को बुलंद करूंगी। तो अल्लाह ने उसके जिक्र को सारे आलम में बुलंद कर दिया। बात जब दिल से निकलती है तो असर रखती है, पर नहीं पर रखती है। ये अल्लाह अकबर कितने दफा हम कहते हैं जिंदगी में, हर नमाज में कई दफा कह देते हैं, राइट? मगर बाज दफा जब अल्लाह अकबर दिल की गहराइयों से निकलता है ना, तो अर्श के ऊपर तक पहुंच जाता है, और जब वहां पहुंचता है तो वहां से जब एको होती है तो सारे आलम में फैल जाता है। ये मकाम कब आता है पता जिंदगी में? जब इंसान ये यकीन के साथ सोच ले कि अब मेरा किसी और से कुछ नहीं होगा, सिवाय अल्लाह के कुछ और मेरी मदद करने वाला नहीं है, तो अल्लाह की वो जात आपकी तरफ तवज्जो होती है और फिर कोई इसका पालबिगा नहीं कर सकता। तो ये पावर है अपनी सिस्टर्स के पास, और आपकी एक आह जो निकलती है ना, क्या फर्श के ऊपर तक पहुंचा, वो आह निकले तो, वो आह निकलने वाला यकीन बने तो क्या ये मुमकिन है? ऐन मुमकिन है। इसकी मिसाल वो आपने देखी हिजाब वाली के साथ। बाज़ मर्तबा ऐसे सर्कमस्टेंसेस अल्लाह रब्बुल इज्जत क्रिएट करते हैं, आपको मुश्किलात और मशक्कतों से गुजारते हैं ताकि आपके ईमान को बॉयल होकर उस मकाम तक पहुंचे। इसकी मिसाल क्या है? चाय बन सकती है ना, कच्ची चाय पीते कि पकी हुई पीते हैं? पकी हुई पीते हैं। पकी हुई चाय ऐसी होती है कि उबाल आने के बाद बनती है। अच्छे खासे प्यारे से ठंडे से दूध को आप उसको पकाते हैं पत्ती में डालकर और जिराते हैं खूब, जितना पकाते हैं तब जाके उसका मजा लेते हैं। भैया आप मामूली चाय को अपने लब पर नहीं लगाना चाहते हैं जब तक उसको जिरा कर उस मकाम तक नहीं पहुंचाते, और आप चाहते हैं कि आपका मकाम अल्लाह तक पहुंच जाए और आपकी कोई जिरा ना हो, कोई तपिश ना हो। ये मुमकिन नहीं है ना। कुछ तो तपना पड़ेगा, कुछ तो पकना पड़ेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर ही बुरे गुलजार होता है। इंसान की फितरत में है मिटाना। कोई अपने माशूक और आशिक के लिए मिटा देता है, कोई दुनिया मुजाहिद के लिए मिटा देता है, कोई अल्लाह के लिए अपने आप को मिटा देता है। चॉइस इज योर्स। ये दी हुई एक जान, ये मौका जो दुनिया में गुजारने का एक वक्त आपको इख्तियार है, कहां उसको खपाना है खपा दीजिए बस, दुनिया के अंदर या दीन के अंदर, मखलूक के वास्ते या खालिक के वास्ते। सवाल इसका। अच्छा, तो क्वांटिटी और क्वालिटी की बात हो चुकी है। इन तमाम बातों के बाद 15 मिनट हमारे पास बाकी है 4 बजने में। कितने लोग सो रहे हैं और कितनी गुराटे यहां तक सुनी आई? ऐसा तो नहीं हुआ, सारे जाग रहे हैं माशाल्लाह।
इतनी बोरिंग थी ये बात, क्या आप सब जाग रहे हैं या कि फिर इंटरेस्टिंग थी? बात समझ में आई कुछ? सिर्फ यस कि इंशाअल्लाह ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तब्दीली आ गई है ना? तो इसका एक काम का वादा करो आप लोग के अंदर जो तब्दीली है ये सब आपके तक महदूद नहीं रहना चाहिए। ये ऐसी ब्यूटीफुल चीज है जो आपके अंदर आ गई। अब आप इसके एम्बेसडर बनना है, एम्बेसडर ऑफ इस्लाम। मैं वहां कहता हूं वी आर मैसेंजर्स ऑफ मैसेंजर हबीबुना सय्यिदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग कहते हैं वाओ वाओ वेट अ मिनट, मैसेंजर इज मोहम्मद मैन, हाउ कैन ही बी द मैसेंजर? मैं कब कह रहा हूं तुमको कि अल्लाह के तुम मैसेंजर हो? अल्लाह के तुम मेरे हबीब ही मैसेंजर है, मगर मेरे हबीब के मैसेंजर हम तो बन सकते हैं ना। अल्लाह के पैगाम को हम तक पहुंचाने वाले रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह के पैगाम को पहुंचाने वाले हम तो बन सकते हैं ना। तो अब मैं आप सबसे ये वादा लेना चाहता हूं कि क्या आप सब भी मेरे हबीब के मैसेंजर बनेंगे इंशाअल्लाह? उनकी मैसेज को आगे पहुंचाने वाले बनेंगे? जरूर करना होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले हम सबको। इसके बनने का तरीका क्या है? प्रैक्टिकल। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन बातें तो सब अच्छी करते हैं, लच्छेदार तकरीर मुसामिया खूब करके चले गए, करके बताओ भाई, करके बताओ वाला मामला। मुझे याद है अच्छे तरीके से, हैबिट्स का किस्सा है। अमेरिका में जाने से बहुत पहले की बात है। मस्जिद हम लोग हैबिट्स में रहते, मस्जिद आमिरा में नमाज पढ़ते हम लोग। उस वक्त आई डोंट नो अफगानिस्तान क्या होता है, 30 साल पहले की बात है, 30 ने बढ़ गया ऑलमोस्ट 37 ईयर्स बैक। आमिरा से नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, कुर्ता पजामा टोपी, चिकनी अंडी के ऊपर टोपी लगी हुई थी। नमाज पढ़ के जा रहा हूँ तो गणेशा लेके जा रहे थे लोग, तो कोई टोपी खींचने की कोशिश की तो चिकनी अंडी के ऊपर से टोपी आसानी से नहीं निकली, फंस गई थी। तो उन्हें नाकाम हो गया, तो उसको बड़ा गुस्सा आया, वो लॉरी में था भाई, तो वो रंग बिरंगे मुरमुरे देने फेंके डाल दिया, तो सफेद कुर्तों के ऊपर रंग लग गया पूरा। सब कुछ कर दिया यार, जान बना के चले गए। तो फिर मैं देखा उसको, जाके पत्थर ढूंढा, सब समझ जाओ क्या हुआ। तो लच्छेदार तकरीर नहीं, जब मौके में मुकाबले का वक्त आया तो पीछे भी नहीं हटे, मैदान छोड़ के नहीं भागे। फिर का जवाब पत्थर से देना तो देना, मगर वो भी छीनने नहीं देंगे। तो आप इंशाअल्लाह प्रैक्टिकल होना होगा। जब आप किसी के लिए रोल मॉडल और एग्जाम्पल बनेंगे, औरों को हिम्मत और हौसला बनेगा। औरों का जब हिम्मत और हौसला बनेगा तो इंशाअल्लाह काम खुद ब खुद बनते चले जाएगा। 3 बातें इसके अंदर कहकर आगे बढ़ता हूँ। एक, मैं अपने वहां जो करता हूँ वही कर रहा हूँ यहाँ पर। अपने बच्चों से जब वहां पर यूथ से बात करता हूँ तो कहता हूँ कि यार एक बात सुनो, नो मैटर हाउ अट्रैक्टिव, थोड़ा सा जरूरत कर रहा हूँ बोलने की, नो मैटर हाउ अट्रैक्टिव दिस व्हाइट स्किन may seems to you, don't you ever fall for it। मैं कहता हूँ कभी भी नहीं। वादा करो आज इस नशिस्त के अंदर किसी गैर मुस्लिम से शादी मौला, मुझे पता है क्या सवाल थे, तू उठाने से पहले बोल देता हूं, मुसलमान हो गई तू भी? हाँ मौला, नहीं कभी भी नहीं। हाँ मुसलमान हो गई तू भी? नहीं। पहला भाई मुसलमान हो गई तो एक मुसलमान होने दे और एक उन दोनों की शादी करा दी। अरे वो कहीं मतलब उसकी तरबियत नहीं हो गई भाई, मुसलमान बेशक हो गए, उससे गुनाह पूरे साफ हो गए होंगे, मगर जिस माहौल से आ रही तेरे माहौल में नहीं चल सकती, तेरी नस्लों को सही तरबियत नहीं कर सकती। वो बेचारी अलिफाता सीखने की जरूरत है उसको, दीन क्या सिखाएगी उन्हें? आखिर फिर कुछ भी देने वाला नहीं है भाई, नहीं है। तो आप लोग भी वादा करो कोई गैर दीनदार से शादी। मेरी वजह क्या है इसके अंदर? मैं कहता हूं जो अल्लाह के हुकूक की रियायत नहीं कर सकता, आपके हुकूक क्या अदा करेगा? जो अल्लाह के अहकाम के अंदर चीटिंग कर सकता है, क्या गारंटी है कि वो आपके साथ चीटिंग ना करे? हमारे अमेरिका के अंदर लॉजिक के ऊपर बात होती है हर चीज, बच्चे सब रेफरेंसेस चाहते हैं, तो मुझे ऐसी ही बात करना पड़ता है। उनके दिमाग में बैठ जाती है आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट चीटिंग ऑन मी। बोला yeah, if you want somebody who you can trust,
Find somebody who Allah can trust. You want somebody to respect you? Find somebody who respects Allah's rights. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. ये हुदूद अल्लाह ने बनाई है, इस हुदूद को आप फॉलो कर लेंगे तो आपका फायदा है। और एनीबडी हु डेयर ट्रांसग्रेस दिस हुदूद, तो किसी और का नुकसान नहीं बल्कि खुद अपना नुकसान करता है। तो ये जो बातें बताई जा रही हैं वो आपके अपने फायदे के लिए है। आपका अपना पार्टनर, लाइफ पार्टनर आपकी कदर करने वाला आप चाहती हैं, तो फिर ऐसा ही ढूंढिए जो अल्लाह के हुदूद की रिस्पेक्ट करता है। फिर कल आगे ही मैं कहना मेरे को तो मॉडल होना था, मेरे नहीं मगर ये गला करना, और उन्हें करेंगे ही भाई। अरे एक बड़ी अच्छी बात याद है, मैं सुनाऊं आपको, सुना दो एक दो। अभी हालिया अपना हैदराबाद में, यहाँ पर मैं हैदराबाद ही दिखा रहा हूँ आपको, हालिया बोल रहे थे 4 साल में, कोई परसों की बात हो, 4 साल पहले उन्हें मुसलमान हुआ बुरा, क्या सुन गया, अल्लाह ही मेरा दिल हिल गया, मैं रो दिया। मुझे बोलता शेख मूसा में मुसलमान जब हुआ तो 19 साल का था, 23 साल का जब हो गया तो बोला कि अब शादी मुझे कर लेनी चाहिए। तो शादी करने का जब उसको ख्याल हुआ तो वो बोला कि मैं चूंकि बड़ी मशक्कतों को झेल रहा हूँ मुसलमान होने के बाद, वल्लाह यार कभी मौका मिला तो उससे बात करो, क्या कुर्बानियां हैं बेचारे, क्या इन्होंने सैक्रिफाइस किया है। इनके माँ बाप इनको निकाल के भेज दिए, जॉब इनसे छूट गया, इनके दोस्त इनको छोड़ दिए, इनके ऊपर दुनिया तंग हो गई। इतनी सब कुछ होने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी में आया तो उनको शक की नजर से देखा गया, उनको शक की नजर से देखा गया, उनको मुसलमानों ने भी एम्ब्रेस नहीं किया। इतने तमाम चीजों के बाद उनके पास हर रीजन था ये कह करके छोड़ो यार, ये कहकर इस्लाम और मुसलमान सब कुछ मुसीबतें बर्दाश्त करने के बावजूद भी यहाँ धुकारे जा रहे, वही लोग अच्छे थे कम से कम, उसके बावजूद भी और लड़कर नहीं है, वो वापस इस्लाम में ही बैठे रहे। अब जब इतनी मशक्कतों के बाद वो मुसलमान हुआ तो उसने ये कहा कि मुझे अब कोई सच्चे पक्के मुसलमान घराने में शादी करना, जो नस्लों से मुसलमान हो, ऐसी बच्ची चाहिए जिससे मैं कुछ सीख सकूं और मेरी नस्लें मुसलमान बने। इसी फोन के अंदर 2 हफ्ते बल्कि 1 हफ्ते पहले का टेक्स्ट मैसेज भी दिखा सकता हूं आपको, उस लड़के का सुन लीजिए। शादी किया, मुस्लिम मुल्क की मुस्लिम नस्ल लड़की से शादी करने के बाद इस्लाम वो सीख रहा है तो उसको ये पता चला कि चेहरे पे दाढ़ी भी होना चाहिए, दाढ़ी से कपड़े तत्वों से, नमाज बाजमात मस्जिद में, ये सब चीजें जब होने लगी तो शादी भी हो गई थी इसकी, और इसको 7 महीने की लड़की है। फोन मुझ तक क्यों आया पता, मैं काउंसलिंग भी करता हूँ डिवोर्स वाले सिलसिले, डोमेस्टिक इश्यूज के अंदर, और अमेरिका के अंदर मुझे यूं कहकर याद करते हैं कि ये औरतों का फेवर करने वाला इमाम, मुझे कोई अपॉलॉजी नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल फखरिया कहता हूँ, अपनी सिस्टर्स के हुकूक की हिफाजत के लिए बात करता हूँ। तो मेरे खुतबों के बाद फिर मुझे फोन कॉल्स आते हैं इस सिलसिले में, तो किसी ने उसको रिफर किया, उसका एक प्रॉब्लम था। उसका क्या प्रॉब्लम पता, उसकी बीवी से तलाक चाहती है, तलाक की वजह, कीप इन माइंड उसको बच्ची भी है, अल्लाह ताला हर तरीके से उसको सेटिस्फाई करके रखा हुआ है, जाती घर है उसका, अच्छी नौकरी करता है, यंग है, कमा के दे रहा, घर में सब कुछ है। मुझे ये दाढ़ी तुम्हारी मुझे पसंद नहीं, जब तक तुम दाढ़ी काट के नहीं आओगे मेरे कमरे में नहीं आओगे। काउच के ऊपर वो 3 हफ्ते से सो रहा है। मैं बाहर हूं, फोन पे बात करने की कोशिश की, मोहतरमा फोन पे आने से इनकार किया। मौका जब मिला तो फिर मैं पहुंचा तो उसको प्रायोरिटी बनाया था, मैंने कहा कि मैं टाउन में आ चुका हूँ, मुलाकात अरेंज करो, मैं आ रहा हूँ।
गया तो उन्होंने पहले से कह दिया किसी मौलवी की मैं बात सुनने वाली मिस्टर मूसा मिस्टर यूएसए एमयूएसए करता हूं मैं पीसफुली, और जब मुझे मिस्टर मौलवी बनना है तो बहुत अच्छा आता है। अभी मैं अपना कार्ड जब इस्तेमाल करना था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तो वो भी दिखा देता हूँ। अगर बात मनवाना है, बस बात पहुंचाना है, जिस तरीके से दवा पीना चाहते हो मैं पिलाने के लिए तैयार हूं। बताओ कैसा, गोली भी लोगे कि पीस के पिला? तो जनाब मोहतरमा की हर शर्त मान लिया मैं। भला हुक्म कीजिए आप कैसे और किससे बात करना चाहेंगे? ये तो पीछे छोड़ने वाला नहीं है। मैंने कहा कि एक काम करो, होटल पे मैं बुला लेता हूँ आपको, मेरी तरफ से दावत है, आप दोनों को आ जाओ। तो मसलन मुसलमान है ना, तो इज्जत पे रिमार्क आया, अरब भी थी तो और ज्यादा आड़ पड़ा उसको कि भाई मेहमानी का मुझे एहसास मिलना चाहिए, कोई और मुझे खाना खिला। उसने कहा कि नहीं ऐसी बात कुछ नहीं थी, मैं ऐसे कह रही थी आप खाने पे आप भी आ जाए। मौलवी और खाने के लिए यार 100 दफा तैयार। मैंने कहा हलवा क्या खिलाना है इसकी बात करो। थोड़ा माहौल को बनाया गया तो इसको कह दिया था कि देख एक बात कर, तेरा अपने भाई को भी बुला ले और तेरे 2 दोस्तों को भी बुला ले। मर्दाने में जरा हल्ला गुल्ला रहेगा, वरना खामोशी में तो माहौल नहीं बनेगा। तो जब मैं पहुंचा तो 15 मिनट देर से पहुंचा। पहुंच तो गया था, पार्किंग लॉट में बैठे रहा, देख रहा था कि कितने लोग जा रहे हैं। जब इंतजार बन गया तो अंदर पहुंच गया। और वी वर वेटिंग फॉर यू, बोला थैंक यू। अब तक का अपने आप को जबरदस्ती ठोस रहा था। जब उनके मुझसे सुना कि वेटिंग तो यही सुनना तो चाहता था मैं। आ गया, बैठा दिमाग खाने के अंदर बैठे, बातचीत हुई तो थोड़ा सा माहौल बनाया। एक बात भी दीन की नहीं की, सियासी मुद्दों पे बात करते रहा, इनकी बातें बात करते रहा। मतलब आप किचन में सुन रही है, अरे यार ये तो सियासी बातें करने वाला मौलवी है। वो जो मौलवी में समझ थी तो मौलवी है ही नहीं। खाने के ऊपर कोई बात आई तो खाना वाला प्लेटें बना के खा लिए हम लोग, नशिश पूरी करके चलने के लिए भी तैयार हो गया। तो पीछे से आवाज आई, वो बात करने वाली थी ना, अगर आप तैयार हैं तो बात करेंगे वरना नहीं करेंगे। नहीं 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 मैं बात करना चाह रही हूँ। फिर तो जरूर बात होगी, और बात होगी इनके सामने नहीं, ये सब कुछ जाना पड़ेगा। तुम्हारे साथ तो सोशलाइज करने के लिए मिला, तो तुम चले जाओ, जिससे बात करना है तो उससे आप बैठ के बात करो। बेगम डाइनिंग टेबल के ऊपर हम लिविंग रूम में साथ बैठे हुए, मैं यहाँ पर बैठा हूँ शोरूम का, बेटी उसके दूर में। मैंने क्या माजरा है, तो उसने सारा सुना कि जब मैं इससे शादी की थी तो इसके ये क्लीन शेप था, हीरो जैसा लगता था, वैसे आदमी से मैंने शादी की थी, कोई मौलवी बन गया, मुझे नहीं पसंद। मैंने कहा तेरा क्या मसला है भाई? इसने कहा कि मैंने नस्लन मुसलमान में इसलिए शादी किया था कि मेरे ईमान को भी मुझे सिखाया गया और मेरे नस्लों की भी हिफाजत करेगी। ये तो बस चाकू लेके बैठ के उसका लगाने के लिए मेरी शादी होगा। नस्लन मुसलमान हो और तवक्को गैर मुसलमान को मुसलमान बना इसलिए और शादी किया मुसलमान घराने में कि अच्छा खानदान मेरा बनेगा, और जो अच्छा सच्चा पक्का मुसलमान बन रहा है तो वही चीज मुझे बन रही है डिवोर्स। अब अल्लाह के फजल से दे आर स्टिल मैरिड, माशाअल्लाह। वो 7 महीने का बच्चा है तो उसका नेक्स्ट आया था, वो बता रहा था मैं, वो सेकंड चाइल्ड से फिर प्रेग्नेंट है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला औलाद के सामने नरीना और गाय या मिजाज की उनकी नस्लें पैदा करें। तो क्या होता है ये चीजें बात दफा अपने उलमा से स्कॉलर से दूर रहने पर खुद हैंडल करने पे हैंडल नहीं होती। जरूरी है कि उलमा से अपने रास्ते को बना कर रखें। और आजकल कोशिश ये की जा रही है कि पूरे तरीके से 2 बातें हो रही है वहां पर। एक ये कि अल्लाह के होने का यकीन मिटा दिया जाए दिमाग से, दूसरा मौलवियों से ताल्लुक को तोड़ दिया जाए, उलमा से ताल्लुक को तोड़ दिया जाए। ये 2 चीजें वहां पर बड़ी हो रही है। वही इसी मुहिम के तहत जो मैंने बताया स्कूल के सिलसिले में जो हो रही है। अब ये नेक्स्ट 3rd वाली जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि अल्लाह का यकीन बढ़ा दिया जाए और खुद मुख्तारी को दे दी जाए। दूसरा गैर एतमादी और एतबारी अपने स्कॉलर्स के दिलों में बिठा दी जाए। तो ये हो रही है। इस सिलसिले में अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। सिर्फ 3 मिनट बाकी रह गए, आप इसको तकमील तक पहुंचाइए। आप भाई यार वो इतनी बातें आप मुझसे हो गई है, वो सवाल जो लोग करेंगे तो उसके जवाब तो लिख देंगे ना आप लोग, है ना? वो पिक्चर वाला तो माशाल्लाह देख लिया आप लोगों ने जो सवाल सबमिट जवाब, अल्लाह की पनाह है, वो सो हैप्पी। आज भी आप लोग हाथ से लिखते हैं और इतनी अच्छी खूबसूरत हैंड राइटिंग है और माशाल्लाह लंबे लंबे जवाब दिए हैं।
इतना तहम्मुल आप लोगों के अंदर है, तो मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं क्यों एक्साइटेड हूँ पता? कल मेरी इस बात के ऊपर भी लंबी लंबी होगी तो मुझे कॉपी चाहिए उसकी, और उसको किताब की शक्ल दे दूंगा तो मुझे पास कहीं नजम चीज पैदा हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अच्छा सा जवाब देना मुझे खुश करने के लिए, रब्बे कायनात को खुश करने के लिए। और मैं क्यों मांग रहा हूँ आप लोगों से? उसकी मखलूक तक आप लोगों की बात को पहुंचाने के लिए। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ताला आप सब एम्बेसडर्स ऑफ इस्लाम बनेंगे, है ना? मैसेंजर्स ऑफ द मैसेंजर सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इस ग्रुप के अंदर इतने जितने आए हैं, हर इंसान यहाँ जो मौजूद है ये इरादा कर ले कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी तो अपने साथ 3-3 लोगों को और लेकर आऊंगी, तो कितना हो जाएगा ये हॉल? 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ताला? इज इट डूएबल? है ना? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसान फरमाए हम सब के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबना शफीअना मौलाना मुहम्मद अब्दुर रसूल। अल्लाह क्या मोहम्मद किसे अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैं आपका बहुत ज्यादा मशकूर और ममनून कि आपने ये मौका इनायत फरमाया कि ये तड़पते हुए दिलों और फिक्र लेके रहने वाले लोगों के सामने कुछ कहने का मौका अता फरमाया। अल्लाह मैं इस पर आपका बहुत ज्यादा मशकूर और ममनून। अल्लाह जो कुछ आपने कहलवाया वो इनके इखलास और उनके सुनने की तरफ की वजह से हुआ। या अल्लाह तो बेहद अपने फजल करम से इसको कबूल फरमा दे। अल्लाह जो कुछ कहा गया सुना गया, या अल्लाह अल्लाह कहने वाला ज्यादा मुस्तहिक है कि उसके ऊपर अमल करे। या अल्लाह कहने वाले और सुनने वालों को उसको अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो बातें बताई गई वो इसलिए नहीं कि ये बस हिम्मत हो, बल्कि ये तैयार हो जाए आने वाले तूफान के लिए, और मजबूत दीवार बुनियाद मरसूद बनकर वो तैयार हो जाए, न सिर्फ अपनी हिफाजत करे बल्कि औरों की हिफाजत करने वाले भी बन जाए। अल्लाह इस मजमे में ये इरादा किया गया कि वो मजबूत दीवार बनेंगे। अल्लाह तेरे हबीब के लाए हुए दीन को न सिर्फ अमल करेंगे बल्कि औरों को भी अमल करने वाला बनने का जरिया बनेंगे। अल्लाह जो छोटी छोटी जानियां बैठी है, या अल्लाह मासूम जहनों के साथ अपने हाथों को उठाए हुए, या अल्लाह तुझसे पूरे यकीन के साथ ये दुआ आती है कि तू उन्हें उनकी मसरत करेगा, तो उन्हें मायूस नहीं करता। अल्लाह तुम्हें मदद फरमा, हमारी मदद फरमा और हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह ये उम्मत के नौजवानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ये उम्मत का मुस्तकबिल है, ये हमारा सरमाया है, तो इसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह गैरों की साजिशों से इनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इनको इतना ज़की बना दे, इनको इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट बना दे कि आने वाली तमाम साजिशों को समझ कर अपनी हिफाजत करके औरों की भी हिफाजत करने वाले बन जाए। अल्लाह इनको इतना हौसला दे या अल्लाह कि इनके हौसलों से औरों की हिम्मतें और हौसले वाली बन जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक और दुआ से मांगता हूँ मेरे अल्लाह कि हम सबको लॉन्ग लाइफ अता फरमा, स्ट्रॉन्ग ईमान। अल्लाह मौत तो आनी है, मैं तो कहता हूँ हम सबको इस दुनिया से जाना है, ये पानी दुनिया है, मगर चूंकि तूने इस दुनिया पर एक ही दफा भेजा है जीने के लिए, तो या अल्लाह जीने का मौका अता फरमा। या अल्लाह हिम्मत और हौसला भी अता फरमा, इल्म भी अता फरमा, हिकमत भी अता फरमा। या अल्लाह मौके भी फराहम करके हम दीन की दिल और जान के साथ खिदमत कर सके। ए अल्लाह ऐसी नस्लें हमें अता फरमा या अल्लाह जो दीन का नाम रोशन करे। या अल्लाह रहती दुनिया तक का या अल्लाह हमारे नस्लों में ईमान को कायम रख। ए अल्लाह हमारे नस्लों में कोई एक भी ईमान को छोड़ के जाने वाला न बने। ए अल्लाह हम में से कोई भी हमारी नस्लों में क़यामत तक ईमान का सौदा करने वाला न बने। ए अल्लाह हमारी नस्लों में आने वाला हर शख्स सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा या अल्लाह सहाबा जैसी ईमान और क़ुव्वत रखने वाला बने। या अल्लाह अय्यूब अल अंसारी जैसी अपने मुल्कों से निकलकर दूर दूर तक जाकर दीन की खिदमत करने वाला पैदा फरमा। ए अल्लाह हिकमत और मस्तिहत सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अजमईन को जो नसीब हुई थी वो उसका हिस्सा हमें भी मिले। या अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तू किसी के साथ खैरखाई का मामला करना चाहता तो उनको दीन की समझ अता फरमाता। ए अल्लाह तुझसे उस दीन की समझ का मुतालबा करते। या अल्लाह तो वो दीन की समझ में अता फरमा दे।
या अल्लाह तू वो दीन की समझ हमें अता फरमा दे, या अल्लाह वो ईमान अता फरमा दे जो हमारे नस्ल सराहत कर जाए, या अल्लाह ऐसा ईमान दे कि ईमान के दुश्मन हमारे से हमेशा हमेशा के लिए मायूस हो जाए। ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यहाँ ठहरने वाली हर लड़की और औरत या अल्लाह जो है, या अल्लाह इनको अपने अपनी कम्युनिटी में, अपनी अपनी फैमिली में एक ऐसा नुमाया शख्सियत बना दे या अल्लाह कि इनकी तरफ से कई और घराने सही रास्ते पे आ जाए। ए अल्लाह, ये तमाम वो चीजें हैं जो मुमकिन है और हुई हैं और तूने नवाजा है। ए अल्लाह, हमारे बड़ों को आज हम तुझसे चाहते हैं कि तू हमें भी नवाज दे। ए अल्लाह, मांगने का तरीका नहीं आता, मगर इतना जरूर मालूम है कि तुझसे जब भी मांगा जाता तो कभी कोई मायूस भी नहीं होता। इस यकीन के साथ तुझसे मांगते हैं अल्लाह, तू महज अपने फज़ल करम से हमारी टूटी फूटी दुआओं को शफ़क़त कबूलियत अता फरमा। ए अल्लाह, कामिल यकीन नसीब फरमा दे। ऐसा यकीन हो कि अल्लाह, जिस तरह हम जब दवा खाते हैं तो यकीन होता है कि सर का दर्द खत्म हो जाएगा, नहीं होता तो फिक्र होती है कि सही दवा खाई पी के नहीं। तो इसी तरीके से दुआ के अंदर भी हमारा यकीन हो जाए कि अल्लाह एक मरतबा तुझे आगे अर्जी पेश कर दे तो ये यकीन हो जाए कि तू इस मामले को संभाल लेगा। इस यकीन के साथ हमें लौटना नसीब फरमा दे। मैंने इन आंखों से देखा है अल्लाह, हाथों को, मांगने वाले हाथों को गिरने से पहले उनकी जरूरतों को तूने पूरा किया। क्यों ना करे तू, जबकि तूने वादा किया उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मुझसे मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। तो अल्लाह, इस यकीन के साथ आज से मांगते हैं वो चीज जुर्अत करके या अल्लाह जिसके हम अहल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है अल्लाह, और इसमें कोई हमें शर्म नहीं है कहने के लिए कि हम इसके अहल नहीं, क्योंकि हम अपनी जात को अच्छे तरीके से जानते हैं किस गंदगियों में हमने अपने आप को लपेटा हुआ है, किस तरीके से अपने आप को हमने दुनिया का गुलाम बनाया हुआ है। थोड़ी सी ख्वाहिशात नफसानी हमें दुनिया की तरफ हमें माइल कर देती है और दीन को कुर्बान करने पर आमादा कर देती है, और हमने अपने हाथों से दीन के बड़े बड़े अहकामों को ज़िबाह किया है अल्लाह, और हम जानते हैं किस गंदगियों में अपने आप को हमने मुलव्विस कर रखा है। आज बेशक तेरे घर तक आप पहुंचे हैं, तेरे अल्लाह वाले जैसे अपने आप को हालत बनाकर पेश तो कर रहे हैं, मगर दिलों के अंदर अपनी तारीखियों को अच्छे तरीके से हम जानते हैं। ये गंदगियां हमारे अपने मोहब्बत करने वाले वालिदैन और घर के बड़े बुजुर्ग अगर जान ले तो हमारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे, मगर तू उन तमाम पोशीदा हमारी खामियों से और ऐबों से आगाह होने के बावजूद भी हमें अपने घर तक पहुंचा दिया। आज तू हमें इस मकाम तक पहुंचाया कि तेरे आगे हम अपनी अर्जी पेश करने वाले बना दिया। या अल्लाह, ये ऐब हमारे अगर मखलूक पर आया हो जाए तो वो हमारे मुंह देखना भी गवारा नहीं करेंगे, मगर तू आज अपने करीब यहाँ बुला लिया। मेरे अल्लाह, तुझे इस करीब को बुलाने पर, तुझे इस अपने घर पे बुलाने का वास्ता, तुझे इस मजलिस में बैठाने का वास्ता, या अल्लाह तू महज अपने फज़ल से जब तू यहाँ तक बुला लिया तो आज जुर्अत करते हैं अल्लाह, एक दफा आज इस बात का फैसला कर दे कि तू आज हमसे हमेशा हमेशा राज़ी हो जाएगा और आज के बाद हमें गुमराह नहीं होने देगा, इसका फैसला कर दे। और आज हमको उन अपने मकबूल बंदों में शामिल कर लेगा जिसको तू कबूल कर कर अपने दीन की खिदमत लेने का फैसला करता है। ए अल्लाह, तू महज अपने फज़ल करम से अपने उस मकबूल बंदों में हमें शामिल करने का आज फैसला कर ले, जिसकी तू हमेशा मदद किया, जिसके जरिए से न सिर्फ उनको दीनदार बनाया बल्कि दुनिया को इस दीन की तरफ आने का उनको जरिया बनाया। ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तू महज अपने फज़ल करम से हमें कबूल फरमा ले और हमारी गज़लों को कबूल फरमा दे। ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, तू हमारे इतने बड़ों की दुआओं, खैर की दुआओं में हमेशा हमेशा हमारा हिस्सा रख। ए अल्लाह, दीन की समझ अता फरमा, उलमा की कदर करने वाला बना दे, उलमा से ताल्लुक़ रखने वाला बना दे, उलमा से ताल्लुक़ रखकर अपनी इस्लाह नफ्स करने वाला बना दे। ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, महज अपने फज़ल करम से आका इनामदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फख्र होने वाले ज़ुमरे में हमें शुमार फरमा दे। ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हर वो खैर तुझसे तलब करते हैं जिस खैर का तलब किया आका इनामदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हर उस शर से तेरी पनाह चाहते हैं जिससे पनाह चाही आका इनामदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ए अल्लाह,
तूने हुक्म दिया है कि सिर्फ दुनिया की ही कामयाबी, दीन की ही कामयाबी मत मांगो, बल्कि दुनिया की भी मांगो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा आति अनफुसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका सलामतन फिद्दीन व आफियतन फिल जसद व ज़ियादतन फिल इल्मी वल हुदा व बरकतन फिर रिज़्क़ व सिहहतन फिल अक़ल। इलाही इलाहना तौबतन क़ब्ल अल-मौत व राहतन इंद अल-मौत वल अफ़्व इंद अल-हिसाब वल फ़ौज़ बिल जन्नह वन नजात मिनन नार। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व दुआअन मुतक़ब्बला।